सर मिट्टी को थोड़ा टाइम लगता है, उसका नेटवर्क इश्यू है। वीडियोस ऑन रखना है सबको, कम ऑन, turn the videos on. Problem number 6, sixth problem. Take it out. Sixth sum. Videos on Janvi, Riya, Jainam. I think I discussed this problem in the last lecture already. I've already done the markings and all. Okay, I'll repeat the problem while doing it again. Sixth sum, Western Gymkhana, 31st March 07. Okay, balance sheet was on same date. Draw fast. Tomorrow 6 chapter test. Okay, timing is in the evening from 6 p.m. to 8:15 p.m. Okay, 2 hour 15-minute test, 6 chapters. Pattern is given to you with objectives with BOE pro forma. Prepare properly. सर ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स का है ना? 10 plus 5. हाँ, ओके। 10 of object, 10 marks objectives and 5 mark BOE. सर वन सेंटेंस One sentence option में रहता है, so I'm not going to ask as such. But one sentence का question कोई दूसरे फॉर्म में आ सकता है, in the form of fill-ups, commercial terms, true or false. सर पेपर में ऑप्शंस होगा कि नहीं? No option, no option. All questions complete. All questions compulsory. Let's start. Number 6 from the payment side. Start with salaries. सर वो पेपर में कैलकुलेशन होगा क्या? सब होगा अभी, चलो. Come to sum number 6. Sixth question में सैलरी, सैलरीज पे कोई डॉट किया है? चेक करो, बताओ मुझे फटाफट. Is there any dot on salaries? कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। आउटस्टैंडिंग सैलरी. ओके, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है. पॉइंट नंबर 2 सेकेंड लाइन पे दिया हुआ है. सैलरीज आपने पे किया है 1300, बट करंट ईयर का देना बाकी है. तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड टू सैलरीज. 07 का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 200. It becomes 1500. Current year's expense is 1500. Okay. Then entertainment expense. उस पे कोई डॉट है? चेक करो. एंटरटेनमेंट एक्सपेंस पे कोई डॉट नहीं है, आई थिंक. So that's expenditure 645. 645. Electric charges. Electric charges 234. No dot. So outer column. General expense also I don't think so there is any dot. So to general expense. ये सब आपने जितना पे किया है उतना ही इनकर्ड है, नथिंग एक्स्ट्रा. बराबर है. Rates and taxes. Rates and taxes are also your expenses. 120 rupees. 120 is your rates and taxes. और एडजस्टमेंट अच्छा, rates and taxes पे है क्या? Prepaid है, right? Rates and taxes are 120. Adjustment number 2. Second line again.
सेकेंड लाइन पे दिया हुआ है कैरी फॉरवर्ड ₹20 एज रेट्स पेड इन एडवांस. Carry forward ₹20 as rates paid in advance. Rates paid in advance means prepaid rates. So prepaid rates, what are we supposed to do? Less from rates. So less prepaid rates. मन को अंदर लो ना. इसको मनन लिया. ₹20 are prepaid rates. So outer column it will be ₹100. Okay. Then what is the next one we have is investment. Where do we put investment? Acha, are these investments purchased in the current year or they are coming from previous year? Simple question. ये जो 3000 के इन्वेस्टमेंट है ये करंट ईयर के हैं कि ये लास्ट ईयर का है? करंट ईयर के परचेज है. ओके, करंट ईयर के परचेज है. कोई भी एसेट अगर आपको रिसीट पेमेंट में दिख रहा है मतलब यू हैव बॉट इट इन द करंट ईयर. सिंपल सा लॉजिक है कि आपने खरीदा हुआ है, पैसे दिए हुए हैं, आपको रिसीट पेमेंट में दिख जाएगा, है ना. तो दीज आर योर करंट ईयर्स इन्वेस्टमेंट. तो आप जस्ट एक बार चेक कर लो नीचे डेटा में, डू यू हैव इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम लास्ट ईयर? डू यू हैव इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम लास्ट ईयर? नो. थर्ड पॉइंट पे अगर आप पढ़ोगे तो क्या दिया हुआ है? जिमखाना ओन बिल्डिंग स्टैंडिंग इन द बुक्स एट 15,000 एंड फर्नीचर स्टैंडिंग एट 1150. तो इन्वेस्टमेंट जो है कुछ लास्ट ईयर से आया हुआ नहीं है, तो इसी साल खरीदा है हमने सिर्फ. लास्ट ईयर कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे. इन्वेस्टमेंट्स आर 3000 बट देयर इज अ डॉट ऑन इन्वेस्टमेंट. व्हाई वी डन दैट डॉट ऑन इन्वेस्टमेंट? कैन एनीवन टेल? Interest receivable. Interest receivable. So add outstanding interest on investment. I want you all to make a small note for that. Working note number 1. Working note number 1. What is the adjustment on interest? Working note number 1. Outstanding interest. Outstanding interest. See what have they given? Line number 1, 2, 3, 4. Fourth line, second last line. Interest for 3 months at the rate of 12% is accrued on investment. So interest for 3 months is accrued दिया हुआ है ना, तो ये hidden नहीं है, ये normal adjustment है. This is normal adjustment क्योंकि outstanding interest दिया हुआ है. They are telling you specifically that outstanding interest for 3 months it is there. 3 ही महीने का देना मिलना बाकी है यहाँ पे. तो outstanding interest exactly for 3 months इतना ही मिलना बाकी है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? 3000 का इन्वेस्टमेंट पे एट द रेट ऑफ 12% for 3 months. How much that comes to? 90 rupees. So 90 rupees is your receivable interest in this case. Is it clear? 90 rupees is your receivable interest. ये 90 rupees का दो इफेक्ट क्या होने वाला है आपका? ऐड टू इंटरेस्ट एंड एसेट्स में ऐड. तो यही 90 आप एसेट में ऐड करके दिखा दो. रिसीवेबल है 3090 हो जाएगा आपका आउटर कॉलम वैल्यू. 3000 rupees of investments plus 90 rupees of interest receivable. Got it? Then we have printing and stationery. Printing and stationery, that is expense. So to printing and stationery, there is no adjustment. So to printing and stationery, that is 241. ये है कुछ adjustment printing पे देख लो. Printing and stationery कोई डॉट है? कुछ नहीं है. तो आउटर कॉलम एक्सपेंसेस ऑफ 06. ये पता है लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था. एक्सपेंसेस ऑफ 06 या दोषी. व्हाई एक्सपेंसेस ऑफ 06 आर शोन ऑन द पेमेंट साइड? इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेंसेस ऑफ 06 का पेमेंट साइड में दिखने का मतलब क्या होता है? बोलो. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक्सपेंसेस ऑफ 06 यू आर सीइंग ऑन द पेमेंट साइड. का मीनिंग क्या हुआ? हमारा करंट ईयर तो 07 है, तो 06 का पेमेंट साइड पे क्यों दिख रहा है? थिंक. कम ऑन. क्यों 06 का पे किया है अभी बोलो.
आंसर, कम ऑन। सिंपल है, 2 सम में किया भी हम। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, ये साल पे किया। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, ये साल पे किया है। तो जाना कहाँ चाहिए? वेयर डू वी शो सच एक्सपेंसेस? We show such Last year expenses in balance sheet. last year balance sheet liability. Okay. 99% of the student, not only 99% of the student make this common mistake. 06 का expense expenditure में दिखा देते हैं आंख बंद करके। उधर साल देखो ना, करंट ईयर का नहीं है 07 का, और लास्ट ईयर का अभी पे किया है आपने। तो इफ यू आर पेइंग लास्ट ईयर का अभी, मतलब वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था ना, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। ओके, करंट ईयर में नहीं दिखेगा, वो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिखेगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा बैलेंस शीट बना रहा हूँ लास्ट ईयर का। यू वांट यू कैन मेक। ये सब में जरूरी नहीं है। व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी? कैपिटल कैपिटल फंड दिया हुआ है। अगर कैपिटल फंड दिया हुआ है तो आपको बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, बराबर है। तो ये सब में एक्चुअली जरूरत नहीं है, बट स्टिल वी विल मेक इट। व्हाई? Just for our understanding, just we include that the capital fund is correct. We find out that capital fund from the opening balance sheet, can cross check by putting it in the closing balance. तो मैं ये बैलेंस शीट बना रहा हूँ। देखो, करंट ईयर का बैलेंस शीट इज 31 मार्च 07 वाला, तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 06, या 1406 लिखो या फिर 31 मार्च 06 लिखो, चलेगा। इज दैट क्लियर? सर प्रीपेड रहेगा तो रिसीट्स में दिखेगा ना? प्रीपेड कभी रिसीट में कैसा दिखेगा? प्रीपेड मतलब लास्ट ईयर ही पे किया हुआ है। लास्ट ईयर का जो प्रीपेड है वो कभी रिसीट पेमेंट में दिख ही नहीं सकता है। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से सीधा एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाएगा। लॉजिकली थोड़ा दिमाग लगाने का ना। लास्ट ईयर हमने पे किया है, लास्ट ईयर पे कर दिया तो पैसा चला गया है, तो ये साल कैसा दिखेगा पेमेंट में? सिंपल, तो सीधा एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। Now this is what? This is outstanding expense of last year. Last year का outstanding expense आपने ये साल पे किया है, तो किधर जाएगा? तो last year liability जाएगा, outstanding expenses. Last year's outstanding expenses 600. Okay, just one effect in the last year's balance sheet. Receipt payment में payment side पे दिख रहा है आपको, that's a hint कि आपने last year payable रखा था। Is that clear? Then next one we have is fixed deposit. ये कौन सा fixed deposit है? One we have bought in the current year or one which is coming from previous year? Tell. current. From the we have bought it in the current year. We have bought it in the current year because it's appearing on the payment side. So check करो कोई fixed deposit थे कि अपने पास last year? Third line data में दिया हुआ है कुछ last year fixed deposits. Did we own any fixed deposit in the previous year? So I don't think so कुछ थे। तो सीधा का सीधा करंट ईयर बैलेंस शीट में लिख दो फिक्स्ड डिपॉजिट। लास्ट ईयर कोई फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं थे, ये साल आपने परचेज किया हुआ है 1000 का, इस पे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो आउटर कॉल। ओके, देन वी हैव बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, दैट इज 895। दैट इज व्हिच बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर कैश / बैंक लिखो या कैश लिखो। करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस 895 करंट ईयर एसेट। एंड ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस विल गो टू लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट, बिकॉज लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज 1040। 1040 will go to last year's balance sheet asset side. Is that clear? Okay. Next. Come to the subscription part. How many subscriptions they have given? Please check how many subscriptions they have given. They have specified 3 subscriptions, 6, 7 and 8. Now ask yourself, what is 06? 07 अपना current year है, तो 06 क्या हो जाएगा? Last year. 06 का receipt में दिख रहा है आपको 85. 06 का आपको receipt side दिख रहा है 85. What does that indicate? लास्ट ईयर का 85 अभी मिला। लास्ट ईयर का 85 अभी मिला है, मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर मिलना बाकी था।
जो अभी मिला है। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में किधर दिख रहा होगा वो? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये 31 मार्च 06 की बैलेंस शीट है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड आ जाएगा 06, वही वाला सब्सक्रिप्शन कितना था 85। लेकिन उस पे एक एडजस्टमेंट है, आपको अगर याद होगा तो मैंने डॉट भी करवाया है उस पे। इफ यू रीड एंड चेक प्रॉपरली द फर्स्ट लाइन, व्हाट हैव दे गिवन? रीड द जिमखाना हैज 450 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 10 ईच। 450 लोग 10 रुपए के हिसाब से पे कर रहे हैं, करंट ईयर का इतना होना चाहिए, दैट इज द मीनिंग। फिर आगे क्या दिया? ₹20 are still in arrears towards the subscription of the year 06. ₹20 are still in arrears towards subscription of the year 06. मतलब आउटस्टैंडिंग। स्टिल इन अरियर्स का मीनिंग क्या होता है? स्टिल इन अरियर्स का मीनिंग होता है कि लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था, ये साल भी मिलना बाकी, लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था और ये साल भी मिलना बाकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बोर्ड्स का फेवरेट है, बहुत बार आ चुका है। स्टिल इन अरियर्स, स्टिल इन अरियर्स का मतलब है लास्ट ईयर भी 20 रुपीज मिलना बाकी था, ये साल भी 20 रुपीज मिलना बाकी है। तो आपको जो 85 दिख रहा है, अभी हमने जो 85 देखा साइड पे, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस एंड टेल मी, is that 85 including that 20 rupees or without that 20 rupees? No, without 20. Without. It is without that 20 rupees. Why it is without that 20? 85 तो मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 20 रुपीज अभी भी मिलना बाकी है। लास्ट ईयर तो पेंडिंग था, अभी भी मिलना बाकी है, ऐसा सीन है। तो क्या यू कैन थिंक एंड टेल मी कि लास्ट ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था? 105. हाँ, 85 प्लस 20 105 था लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? 105 रुपए आपको लास्ट ईयर मिलना बाकी था, जिसमें से 85 रोकड़ा आ गया, तो आपने एंट्री मार दी कैश टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अलग से दिख रहा है रिसीट साइड पे। अभी बाकी है और 20 रुपीज मिलना बाकी है, तो वो 20 किधर दिखेगा तुमको? वेयर विल यू शो दैट रिमेनिंग 20 विच इज स्टिल इन अरियर्स, अभी भी मिलना बाकी है? करंट ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट, करंट ईयर। सर बट इधर ऐसा हो सकता है कि 85 में से 20 अभी तक नहीं मिला और बाकी सब मिल गया। That's what I asked you in the very first place just now. Does that 85 include that 20? Use your common sense. Come on. I'm telling you, अभी चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला क्या? ये 20 still in arrears. Still in arrears मतलब अभी भी मिलना बाकी है, 2007 के एंड तक अभी भी मिलना बाकी है। तो 85 के अंदर कैसे हो सकता है? 85 इस साल का रिसीट पेमेंट है ना, अप्रैल 2006 से मार्च 2007 का रिसीट पेमेंट है। अप्रैल 2006 से मार्च 2007 के रिसीट में आपको 85 दिख रहा है, तो इस साल करंट ईयर 6-7 में 85 रुपीज रोकड़ा आ चुका है और 20 अभी भी मिलना बाकी है, तो वो 85 के अंदर कैसे हो सकता है? 85 तो मिल चुका है, तो 20 उसके ऊपर होगा। आर यू गेटिंग दैट? सो 85 मतलब वो रिसीव्ड है, रिसीव्ड, उसके अंदर रिसीवेबल कैसे हो सकता है? रिसीवेबल अलग ही है 20 रुपीज। तो इन शॉर्ट लास्ट ईयर एक्चुअली कितना मिलना बाकी था? 105 मिलना बाकी था, 85 प्लस 20, जिसने से 85 मिला है आपको और अभी भी 20 मिलना बाकी है, दैट इज स्टिल इन अरियर। गॉट इट? आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. Instead of giving still in arrears, they will give you one more way. They will give you like this. They will tell you, last year 2006 में total outstanding subscription was 100 rupees. Last year, in the year 06, total outstanding subscription was 100. Total, not still in arrears. They'll tell you outstanding subscription of last year was 100 rupees. So what does it indicate? Still in arrears? 15 rupees. 15 rupees 15 rupees outstanding. still in arrears. 15 rupees is still in arrears. How did you arrive at that amount? Because out of 100 जो लास्ट ईयर मिलना बाकी था, आउट ऑफ 100 जो लास्ट ईयर मिलना बाकी था, उसमें से 85 रुपीज तो मिला है ना रिसीट साइड पे, तो अभी भी कितना मिलना बाकी है? 15 रुपया। तो 15 रुपया स्टिल इन अरियर हो जाएगा। तो बेसिकली लास्ट ईयर एसेट इट विल बी 100
एंड करंट ईयर एसेट इट विल बी 15 रुपीज 15, जो लास्ट ईयर का अभी भी मिला। प्लस नहीं होएगा 20 और 85? किया तो है भाई प्लस, ये क्या है? मैं आपको 07 की बात कर रहा हूँ। 07 में क्यों 85 आएगा वापस? अभी भी थोड़ी मिलना बाकी है, रोकड़ा तो आ गया ये साल। एसेट में क्या दिखता है? जो मिलना बाकी है, मिलना बाकी है वो एसेट है, बाकी तो कैश आ चुका है 85 का, उसको क्यों रिसीवेबल दिखाना है? करंट ईयर एसेट विल बी ओनली 20 रुपीज, लास्ट ईयर का जो 20 रुपया मिलना बाकी है। अब मुझे जरा सोच के बताओ, सुनो ध्यान से सब लोग, लास्ट ईयर का 200 रुपया मिलना बाकी था, लास्ट ईयर का 200 मिलना बाकी था, जिसमें से रिसीट में दिख रहा है 150, 150, 50 आउटस्टैंडिंग। तो 50 करंट ईयर में दिखेगा कि नहीं दिखेगा आउटस्टैंडिंग? यस। करंट ईयर के एसेट में दिखेगा। लास्ट ईयर 200 मिलना बाकी था, तो लास्ट ईयर एसेट में कितना दिखना चाहिए? 200, जिसमें से 150 रिसीव्ड है, रिसीट साइड दिख जाएगा 150, तो स्टिल इन अरियर्स कितना है? अभी भी कितना मिलना बाकी है? 50। तो वो कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। जब तक आपको रोकड़ा नहीं मिल जाता है ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, तब तक वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट 5, 6, 7 बैलेंस शीट तक कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। दैट इज द मीनिंग। सर मतलब जो 150 है वो ये साल मिला है ना हमको? ये साल के रिसीट में है, हाँ, इनकम नहीं है ये साल की। ओके। रोकड़ा मिला है, इनकम तो लास्ट ईयर की थी ना, लास्ट ईयर ही 200 रुपए ऐड कर दिया होगा आउटस्टैंडिंग के फॉर्म। रोकड़ा तो आपको 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, जिस साल में मिलेगा उस साल के रिसीट में दिखा दे। सर अगर 2008 में हमको मिल गया ये 20 रुपीज अपना आउटस्टैंडिंग, फिर बैलेंस शीट में दिखेगा ही नहीं ना? फिर बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, फिर आपको रिसीट साइड ही 105 दिख जाएगा। 85 की जगह रिसीट साइड में यू विल सी 105। ऑब्वियसली पैसा आ गया तो बैलेंस शीट में क्यों दिखेगा रिसीवेबल के फॉर्म में? इट्स नॉट पॉसिबल ना। गॉट इट? सो ये 85 का लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में। 85 क्या है? लास्ट ईयर का अभी मिला है, और 20 क्या है? लास्ट ईयर तो मिलना बाकी था और ये साल भी मिलना बाकी है। लास्ट ईयर का ये साल भी मिलना बाकी, ये साल के एंड तक पैसे नहीं आए, अभी नेक्स्ट ईयर आएंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, आपको समझो, ये 20 रुपीज जब आपको नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, तब ये 20 कहाँ दिखेंगे? नेक्स्ट ईयर के कौन से अकाउंट में दिखेंगे? रिसीट साइड दिखेंगे, रिसीट पेमेंट में रिसीट साइड दिखेंगे। अच्छा, ये 20 नेक्स्ट ईयर मिलेंगे समझो, तो क्या नेक्स्ट ईयर की इनकम में डाल दोगे? नो। ये इनकम तो 06 की ही है, उसमें आउटस्टैंडिंग आपने ऐड कर दी है, कभी इनकम में ऐड नहीं होगा ये जहां जाके रिसीट में दिखेगा। हाँ, अगर इनकम में इंक्लूडेड है तो माइनस जरूर होगा, ऐड कभी नहीं होने वाला है। इज दिस क्लियर? तो सर अगर वो भी अलग से दिखा होता तो कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा? कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा। परफेक्ट, कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा। अलग से दिखा तो कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा। मतलब ये लास्ट ईयर एसेट ये तो दिख रहा है और रिसीट में दिख रहा है, तो कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा। परफेक्ट, ठीक है। अभी आगे बढ़ो। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन? चेक। 07 का सब्सक्रिप्शन कितना दिया? व्हाट इज 07 का सब्सक्रिप्शन? 4000 रुपीज। अब वो कहाँ जाना चाहिए? थिंक लॉजिकली। वेर यू विल राइट करंट ईयर का रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन? इनकम में जाना चाहिए। परफेक्ट। बाय सब्सक्रिप्शन इट शुड गो टू इनकम, राइट? 4000। ये तो रोकड़ा मिला है ना आपको, गाइस समझना है इसको, ये रोकड़ा मिला है। दिस इज द कैश रिसीव्ड 4000। दिस डजंट इंडिकेट कि दिस इज योर अर्न्ड इनकम ऑफ करंट ईयर। इसमें रिसीवेबल का भी बड़ा सा हिस्सा होता है, तो चेक करो रिसीवेबल का कुछ दिया है क्या। वेरी फर्स्ट लाइन इफ यू चेक, क्या दिया है पढ़ो। द जिम खाना हैज 450 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 10 रुपीज ईच। मतलब 450 मेंबर है आपके पास जो 10 रुपए के हिसाब से पे कर रहे हैं। तो ये साल की अर्नड इनकम कितनी हुई बता सकते हो? 4500। इतना तो इनकम होना चाहिए, इतने पैसे आने चाहिए करंट ईयर के, लेकिन अफसोस आए नहीं है। मिले कितने हैं आपको अभी तक? 4000 रुपीज ही मिले हैं। होने चाहिए मेरे पास 50 स्टूडेंट है,
10,000 रुपया फीस है, 5 लाख रुपया मेरी इनकम कमा ली है मैंने ये साल, लेकिन मुझे मिली है 4,70,000। अभी तक 3 लोगों ने फीस नहीं भरी है, 30,000 लेने बाकी है। तो क्या करूंगा मैं, वो 30,000 इनकम रिसीवेबल करके ऐड कर दूंगा ना, करंट ईयर की अर्नड इनकम है मेरी। तो वैसे ये 500 क्या हुई आपकी करंट ईयर का अर्नड इनकम हुआ। ऐड इट टू सब्सक्रिप्शन। देखो 4,500 आउटस्टैंडिंग नहीं है, 4,500 इज नॉट आउट, उतना टोटल इनकम है। 4,500 तो टोटल है ना, वो आउटर कॉलम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपका। तो मिला कितना है 4,000। ऐसे एक चीज देगा, या तो टोटल दे देगा मेंबर वाला सब्सक्रिप्शन, या तो आपको आउटस्टैंडिंग दे देगा। दोनों में से एक आइटम रहेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सब में इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी दी होगी। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना ऐड करोगे करंट ईयर 07 का आप, 500 रुपया। तो 4,000 plus 500 will give you 4,500. Is this part clear? अच्छा, टेल मी वन मोर थिंग, वो जो 85 था लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग, क्या वो माइनस करना है इसमें से? नहीं, अलग से दिया है। अलग से दिया है, इसलिए हम लोग माइनस नहीं कर रहे। नहीं तो पिछले सम को उठा के देखोगे, पिछले 4-5 सम में हमने माइनस किया है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ये सम में क्यों नहीं किया? क्योंकि अलग से दिया हुआ है। लास्ट ईयर का 85 अलग था, ये साल का 4,000 अलग था। नो मिलावट, शुद्ध सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का अलग, लास्ट ईयर का अलग, तो माइनस वाइनस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? अभी एक और सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है वहां, 08 का भी दिया हुआ है। देखो ध्यान से, 08 का सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है? हाउ मच इज 08 का सब्सक्रिप्शन? इट इज 103। अब ये देखो, दिमाग लगाने का, सोचने का, वो किधर दिख रहा है? रिसीट में दिख रहा है। रिसीट में दिखने का मतलब नेक्स्ट ईयर, 08 इज नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी आके रिसीट में मिल गया है, रोकड़ा मिल गया है, तो क्या करूं, इनकम में ऐड कर दूं उसको? लायबिलिटी में जाएगा। किधर जाएगा वो? लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्यों जाएगा? दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब ज्यादा मिल गया है। मेरी फीस थी 5 लाख, किसी ने नेक्स्ट ईयर का भी 10,000 अभी दे दिया, तो 5,10,000 हो गया ना। 5,10,000 थोड़ी ये साल की इनकम है, 10,000 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये 103 सब्ट्रैक्ट करूं क्या सब्सक्रिप्शन में से? रिसीव्ड इन एडवांस है तो शुड आई सब्ट्रैक्ट दिस 103 फ्रॉम माय सब्सक्रिप्शन? तो हर एक सम में तो करते थे, फाइनल अकाउंट में भी करते थे। अलग से दिया है, अलग से दिया है, अलग से दिया है। याद है फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस में कभी कभी आता था इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सीधा लायबिलिटी जाता था एक इफेक्ट। यू नेवर यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इनकम, क्योंकि अलग से दिया था, इनकम में इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे तीनों सब्सक्रिप्शन अलग अलग है। 85 लास्ट ईयर, 4,000 करंट ईयर एंड 103 नेक्स्ट ईयर। तीनों को अलग अलग दिया है, अलग अलग दिखाओ, कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो एक शॉर्टकट रूल आप याद रख सकते हो इसके लिए, whenever year wise subscription is given in NPO or for that matter any expense, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, शॉर्टकट है। whenever year wise information is given about subscription or any other income or any other expense, year wise, so we do only those adjustment where we are supposed to add. लेस वाले एडजस्टमेंट होंगे ही नहीं। ये दिख रहा है यहाँ पे, मैंने कुछ लेस किया है सब्सक्रिप्शन? नहीं, खाली प्लस वाले एडजस्टमेंट होंगे। प्लस प्लस क्या करते हो? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड, बस। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करने का, लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड भी ऐड करने का, अगर है तो। लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड ये सब में नहीं है, अगर होता तो वो ऐड हो जाता। लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड मतलब ये साल का पैसा लास्ट ईयर मिला हुआ है, इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर, वो ऐड हो जाए। लेस कुछ भी नहीं होगा, ईयर वाइज आइटम दिया है ना, तो लेस कुछ भी नहीं होगा, जो होगा वो ऐड होगा। That's a shortcut you can remember. Then next one we have is donations. Read what have they given about donations. Please read. What have they given about donations? Capitalize. Capitalize करना है ना, तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो। लास्ट लाइन पे दिया हुआ है, प्लीज रीड दैट ऑल ऑफ यू। कैपिटल फंड में वी विल ऐड डोनेशंस।
कैपिटलाइज कितना है, डोनेशन 1200, लॉन्ग टर्म रिसीट है, वन टाइम रिसीट है। एंटरटेनमेंट रिसीट, एंटरटेनमेंट रिसीट के बारे में कोई डॉट्स नहीं है तो इनकम में चला जाएगा। एंटरटेनमेंट रिसीट आर इनकम्स 876. Interest is also income, but there is a dot on interest. Remember we did this adjustment just now. Interest is 81 plus outstanding interest. Outstanding interest अभी calculate किया हमने, 90 रुपीज था, तो add कर दो, 81 plus 90 will give you 171. Entrance fees के बारे में पढ़ो, क्या दिया है, सेकेंड लास्ट लाइन, एंट्रेंस फीस 50% कैपिटल, 50% कैपिटलाइज करना है। तो इफ यू रीड प्रॉपरली, बाय एंट्रेंस फीस इनकम में दिखाओगे पूरा, पहले तो कितना है 1000, इस 1000 में से सब्ट्रैक्ट 50% विच इज टू बी कैपिटलाइज, तो 500 कैपिटलाइज हो रहा है, तो आउटर कॉलम इट विल बी 500 एंड कैपिटल फंड में ऐड एंट्रेंस फीस 50%, that is 500. Add entrance fees 50%, that is 500. Is that clear? Got it? So that's about your receipt and payment account. Okay? उसके बाद पढ़ो, एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। जिमखाना हैज 450 मेंबर्स पेइंग 10 रुपीज ईच। मतलब आपका करंट ईयर का टोटल इनकम कितना होना चाहिए, करंट ईयर का टोटल इनकम होना चाहिए 4500। अग्री? तो 4500 में से 4000 मिला है तो 500 इज रिसीवेबल, तो ऐड 500 टू इनकम, ऐड 500 टू इनकम, ये हो चुका है। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा इसका बताओ। सेकेंड इफेक्ट विल बी इन एसेट। ये देखो मैंने लिखा पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 06, इधर ही आप लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 07। 500 करंट ईयर का मिलना बाकी है, टोटल कितना मिलना बाकी है 520, टोटल कितना मिलना बाकी है 520, टोटल इज 520। अब मुझे जरा सोच के बताओ, ये 520 रुपीज आपको लास्ट नेक्स्ट ईयर मिला, रोकड़ा मिला, तो नेक्स्ट ईयर में कहां दिखेगा ये 520? वेयर यू विल फाइंड दिस 520 इन द नेक्स्ट ईयर? विच रिसीट, रिसीट साइड, रिसीट साइड। विल यू एड इट टू इनकम 520 ऑफ नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर के इनकम में ऐड करो। अच्छा, उसके नेक्स्ट ईयर के इनकम में ऐड करोगे? नो। उसके नेक्स्ट ईयर के इनकम में ऐड करोगे? नहीं, कभी नहीं। ये ऑलरेडी ये 06 की इनकम में ऐड हो गया, ये 07 की इनकम में ऐड हो गया, एक बार इनकम में दिखा दिया आपने। अभी नेक्स्ट ईयर आगे वाले किसी भी साल के इनकम में नहीं दिखने वाला, अभी खाली रोकड़ा मिलेगा। समझ में आ रही है बात? एक बार इनकम दिखा दी तो खत्म। मेरे को 10,000 रुपया फीस आनी बाकी थी, मैंने ये साल 10,000 रुपया फीस इनकम में दिखा दी रिसीवेबल करके, और उस पर टैक्स भी भर दिया 20% के हिसाब से 2,000 रुपया। अब मैं क्या घड़ी घड़ी टैक्स भरते रहूं इनकम में दिखा के? अगले साल मिला 10,000, उसका 5,000 नेक्स्ट ईयर, उसका 5,000 नेक्स्ट ईयर मिला, समझो वो तो रोकड़ा आ रहा है, उस पर थोड़ी टैक्स भरूंगा मैं। समझने वाली बात है। तो जिस साल में इनकम रिकॉर्ड हो जाती है उस साल में आप टैक्स पे कर देते हो अक्रूड बेसिस। इज दिस क्लियर? फिर रोकड़ा आपको नेक्स्ट ईयर है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो खाली कैश आ रहा है आपको, कैश। सर आपको समझो अभी मिल जाता, मतलब 10 की जगह 20 मिल जाता, तो फिर आप टैक्स 20 पे टैक्स नहीं भरता मैं, वो रिसीव्ड इन एडवांस है ना 10,000 उसमें, तो 10 ही करंट ईयर का है, बाकी 10 नेक्स्ट ईयर का है। तो नेक्स्ट ईयर में ऐड होगा और ये ऐड हो जाएगा और उस पे टैक्स भरूंगा मैं नेक्स्ट ईयर। ऐसा चलेगा आपका साइकिल। ओके, जिस साल की इनकम कमाई हुई है उस साल में आप टैक्स भरोगे उस इनकम। ठीक है, पैसे आगे पीछे आने दो, कोई फर्क। देन उसके बाद वी हैव 450 मेंबर्स हो गया, 20 रुपीज इज स्टिल इन अरियर्स टुवर्ड्स 06, मतलब लास्ट ईयर का अभी भी मिलना बाकी है। तो लास्ट ईयर तो था ही, ये देखो हमने लिखा हुआ है लास्ट ईयर एसेट 20 रुपीज एंड करंट ईयर एसेट 20।
लास्ट ईयर भी बाकी था, ये साल भी बाकी, गिवन द इफेक्ट ऑलरेडी. Last year asset, this year asset, 2020. Then we have rates paid in advance ₹20. What are those prepaid rates? Prepaid rates है ये रहा one effect less from rates. And second effect किधर जाएगा तो current year asset. Current year asset में डाल दो prepaid rates. Prepaid rates ₹20. अब guys सुनो एकदम ध्यान से. ये प्रीपेड रेट्स है करंट ईयर के, ठीक है. मतलब क्या, आपने करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का पैसा दे दिया है, तो ये ₹20 नेक्स्ट ईयर का क्या होगा बताओ. व्हाट विल दिस 20 एक्सपेंडिचर. दिस विल बी द एक्सपेंडिचर ऑफ नेक्स्ट ईयर. यू विल ऐड इट टू द एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर. समझ में आ रहा है बात. इस साल आपने नेक्स्ट ईयर का पैसा दे दिया है, तो वापस नेक्स्ट ईयर पैसा थोड़ी दोगे, पैसा नहीं दोगे, बट एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करेगा. So we will add this prepaid to the next year's expense. Simple logic. Okay. Then, what do we have? Provide for 200 outstanding salaries. One effect is here, add to salaries किया हुआ है. Second effect is liability of current year. Outstanding salaries कितना है? ₹200. अब देखो, सोचो इसके बारे में. ये करंट ईयर का देना बाकी है. एक्सपेंस तो करंट ईयर में दिखा दिया है, पैसे देने बाकी है, तो नेक्स्ट ईयर कहाँ दिखेगा ये ₹200? सोचो आप. रिसीट. रिसीट नहीं, पेमेंट. पेमेंट. सैलरी पैसा दोगे ना कि लोगे? दोगे. तो जाएगा नेक्स्ट ईयर के पेमेंट में. बट क्या ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है? नो. ये साल का एक्सपेंस में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है. ओके. देन व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? Gymkhana owns land and building standing in the books at 15,000. Already owns. क्या ये आपने करंट ईयर परचेज किया कि ये लास्ट ईयर से टपक रहा है? किधर से आ रहा है ये लैंड एंड बिल्डिंग? हाँ, लास्ट ईयर से आ रहा है. तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाओ, लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग 15,000. लास्ट ईयर के बैलेंस शीट एसेट साइड लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग 15,000. देन ब्रिंग इट टू दिस ईयर, लैंड एंड बिल्डिंग 15,000. उस पे 3 एडजस्टमेंट पॉसिबल है. रिमेंबर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दोस 3 एडजस्टमेंट्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स. व्हाट आर द 3 एडजस्टमेंट? एसपीडी. व्हाट इज दैट एसपीडी? सेल, परचेज, डेप्रिसिएशन. अच्छा, अगर कुछ सेल या परचेज होगा तो कहाँ दिखना चाहिए क्वेश्चन में? रिसीट पेमेंट. सेल होगा तो रिसीट में दिखेगा, ऑब्वियसली पैसा मिला है, और परचेज हुआ है तो पेमेंट में दिखेगा पैसा गया है. तो ना कुछ सेल है ना कुछ परचेज है. अच्छा, तो डेप्रिसिएशन है क्या? चेक करो जरा. यू हैव डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लीज चेक. द एडजस्टमेंट्स दे विल गिव यू डेप्रिसिएशन. 5% दिया हुआ है, 750 माइनस करो, आउटर कॉलम 14,250. ओके. अब ये डेप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट है, इसका इफेक्ट देना बाकी है एक्सपेंस में, याद रखना. अब भी देता हूं मैं. उसके बाजू में एक और एसेट है फर्नीचर, तो उसको भी लिख दो, वो भी लास्ट ईयर से आ रहा है. फर्नीचर अनदर फिक्स्ड एसेट. तो लास्ट ईयर एसेट में लिख दो 1150. लास्ट ईयर एसेट में राइट डाउन 1150, लास्ट ईयर से आ रहा है. करंट ईयर एसेट में आ जाओ, 1150 लिख दो उसको. उस पे भी 3 एडजस्टमेंट, सेल, परचेज, डेप्रिसिएशन. यू डोंट सी एनी सेल, यू डोंट सी एनी परचेज, सिंपली सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ. उधर ही दिया है एडजस्टमेंट में. कितना होता है ये? 115 का प्लस 57, 172.5. 173. राउंडेड ऑफ टू 173. 1150 minus 173 will give you 977. Is that right? 977 आ रहा है आपको आउटर कॉलम फर्नीचर, प्लीज चेक. अब ये डेप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट है, ये देख के नाचने मत लग जाना, ये खत्म नहीं हुआ है. डेप्रिसिएशन इज इटसेल्फ एन एडजस्टमेंट. तो उसका एक इफेक्ट यहाँ पे दिया है हमने, लेस फ्रॉम एसेट. तो व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एक्सपेंडिचर. टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% था, तो दैट वाज 750 रुपीज. एंड फर्नीचर पे 173 था. So I think the total comes to 850, 923. 923 rupees is your total depreciation. Okay.
फिक्स्ड एसेट का फंडा क्लियर है, लास्ट ईयर का है तो लेके आओ करंट ईयर में, देन डू सेल परचेज डेप्रिसिएशन, ओनली 3 एडजस्टमेंट्स आर पॉसिबल। ओके, फिक्स्ड एसेट पे और कोई एडजस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं है, खाली सेल परचेज डेप्रिसिएशन। देन वी हैव इंटरेस्ट इज अक्रूड फॉर 3 मंथ्स ऑन इन्वेस्टमेंट, 3 महीने का इंटरेस्ट रिसीवेबल है। एक इफेक्ट मैंने दिया हुआ है, अगर देखोगे तो ऐड टू इंटरेस्ट किया हुआ है। सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा तो एसेट, सेकंड इफेक्ट एसेट में लिख दो आउटस्टैंडिंग। अच्छा ये भी दे दिया है, ये भी दे दिया है, सॉरी देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में ऐड किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट में ऐड किया हुआ है, एसेट साइड पे ये भी हो चुका है, इनकम वाला भी हो चुका है, नो प्रॉब्लम। ओके, capital fund as on 1st April 06 was 16,695. What is 1st April 06 guys? Beginning of the year or end of the year? बिगिनिंग। Beginning. तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल फंड है और करंट ईयर का ओपनिंग फंड है वो, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स करंट ईयर का ओपनिंग 16,695। ओके, एंट्रेंस फीस हो गया, डोनेशन हो गया, हिडन एडजस्टमेंट है नहीं। अब देखो आप लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में इधर देखो वेरीफाई कर सकते हो, सीधा लास्ट ईयर बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट दिख रहा है आपको, इसमें जो डिफरेंस आएगा ना ये एसेट माइनस लायबिलिटी, ये 16,695 होना चाहिए। अगर ये 16,695 है मतलब आपने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट परफेक्टली बना दिया। तो चेक करो जरा, व्हाट इज द टोटल, what is the total of this last year balance sheet? 17,295. 17,295 is the total asset minus outstanding external liability, 17,295 minus 600 आ रहा है 16,695, yes perfect है। तो ये 16,695 is your का closing fund which becomes current year का opening fund, and now calculate current year का surplus और deficit। टोटल बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे, 6047 और सरप्लस है कि डेफिसिट? सरप्लस 2054 2054 का सरप्लस है। क्या लिखना है यहाँ पे, 2 सरप्लस के बाद लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये सरप्लस व्हाट आर वी सपोज टू डू, ऐड योर कैपिटल, सॉरी करंट ईयर में ऐड करना है, करंट ईयर में ऐड करना है ये सरप्लस आपको, ऐड सरप्लस 2054। कितना आ रहा है फाइनल अमाउंट टोटल आउटर कॉलम? 20449 टैलीज ऑन 20752 20752। That's your problem. Draw for the next sum. Sum number. Sum number. Sum number 7. Draw for sum number 7. Sum number 7. Draw कर लो फटाफट। Sum number 7. Peculiar adjustment in sum number 7. Very important one. Seventh sum. In the books of
कोई नाम नहीं दिया है, तो कीप इट ब्लैंक। ये इन द बुक्स ऑफ आपको हर एक चैप्टर में लिखना है एक्सेप्ट फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इन द बुक्स ऑफ बाकी सब चैप्टर्स में आने वाला है एक्सेप्ट फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। दिस इज 7th सम 31st March 08। इनकम एंड एक्सपेंडिचर करंट ईयर का रिसीट पेमेंट दिया हुआ है आपको, एंड 31st March 08 की बैलेंस शीट। जरा क्वेश्चन पढ़ो और बताओ, इज दिस द फर्स्ट ईयर और इज दिस द फर्स्ट ईयर और अ कंटिन्यूइंग ईयर? सिर्फ इतना बोलो। कंटिन्यू। कंटिन्यूइंग ईयर कैसे पता चला? ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है आपको कैश का। ओके अभी चेक करो जरा एडजस्टमेंट और बताओ कैपिटल फंड दिया है क्या आपने? नहीं दिया है। चेक करो, यू हैव एनी कैपिटल फंड इन द सम? नो। अभी तक के हर एक सम में था कैपिटल फंड, तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट ना भी बनाते तो चल जाता। लेकिन अब गम्मत है, अभी कैपिटल फंड है ही नहीं, तो कैपिटल फंड मिलेगा कैसे? मिलेगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो ये सब में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो ड्रॉ 2 बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस। 2 बैलेंस शीट ड्रॉ हो जाएंगे। तो क्लोजिंग तो बना दी है, ओपनिंग भी बनानी है। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 07। 08 करंट ईयर की है, 07 लास्ट ईयर की। 2 सम में मैंने आपको बताया था ट्रायल करके, उधर तो कैपिटल फंड था, इधर नहीं है, तो जक मार के बनाना पड़ेगा। कैपिटल फंड ढूंढने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना ही पड़ेगा, रास्ता ही नहीं है। ओके तो फॉर्मेट इज सेम, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 07, लायबिलिटीज एंड एसेट। खाली ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। ऐसा मत समझना कि वो लोग ने बनाई नहीं है, वो लोग सब बना के रेडी करके रखे हैं। अपने को पूछ रहे हैं कि भाई तुमको आता है कि नहीं। तुमको पता होना चाहिए कौन सा आइटम लास्ट ईयर का है, कौन सा करंट ईयर का है, कौन सा इनकम एक्सपेंस में जाना चाहिए, कौन सा रिसीट पेमेंट में जाना चाहिए। ये तुमको जानने के लिए तुम लोग बना रहे हो। वो लोग ने तो सब बना के रखा है, लास्ट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट सब रेडी करके दिया हुआ है। सर इसका मार्क्स रहेगा ये बैलेंस शीट का? यस दिस कैरीज मार्क्स। यस, जिस सम में कैपिटल फंड नहीं है उस सम में ओपनिंग बैलेंस शीट ड्रॉ करना है, मार्क्स है उसका। सेम फॉर्मेट, लायबिलिटीज एंड एसेट। खाली 2 कॉलम के जगह 1 कॉलम बना सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। एक ही कॉलम काफी है यहाँ पे। सर वो अरियर वाला होता है, वो अरियर वाला होता है वो क्या? वो एडजस्टमेंट ही होता है ना लास्ट ईयर के लिए भी। अरे लेकिन वो लास्ट ईयर के आउटर कॉलम में ही जाता है ना। देखो ना, लास्ट ईयर का जो भी सम हमने किया अभी तक, पेज जिस टर्न करके देखो, लास्ट ईयर में इनर कॉलम में कुछ नहीं दिखेगा तुमको। लास्ट ईयर का सब आउटर कॉलम अमाउंट ही मालूम है अपने, आफ्टर एडजस्टमेंट, ऑल द एडजस्टमेंट्स इन करंट ईयर। चलो मार्क करते जाओ फटाफट। इंपॉर्टेंट सम है। वेरी फर्स्ट लाइन यू कैन सी 2 आइटम्स, कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड किधर जाएगा पहले वो बताओ। ओपनिंग बैलेंस, कैश इन, लास्ट ईयर बैलेंस शीट। लास्ट ईयर बैलेंस शीट, एसेट या लायबिलिटी? एसेट। कैश है ना, तो लास्ट ईयर एसेट। तो वैसे ही ओपनिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। वो कौन सा ओवरड्राफ्ट है? ओपनिंग ओवरड्राफ्ट है कि क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट है? विच ओवरड्राफ्ट इज दैट? क्लोजिंग। हाउ कम क्लोजिंग? शुरू में दिया है ना, ओपनिंग, फर्स्ट लाइन ओपनिंग ओवरड्राफ्ट। कैश का बैलेंस तो डेबिट साइड ही रहता है। कैश बुक याद है, 11th स्टैंडर्ड कैश बुक, 2 बैलेंस बीडी लिखते थे, कैश कॉलम। बट बैंक का तो दोनों बाजू आ सकता है, 2 बैलेंस भी आ सकता है, बाय बैलेंस भी आ सकता है। तो ये बाय बैलेंस है, फर्स्ट लाइन पे दिख रहा है ना आपको, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट्स द ओपनिंग बैलेंस। सर तो सेकंड लाइन पे आता तो क्या होता? सेकंड लाइन पे कैसा दिखेगा ओपनिंग बैलेंस? वो रिसीट पेमेंट है, कैश बैंक अकाउंट।
ओपनिंग बैलेंस कौन से लाइन पे आता है, या तो फर्स्ट लाइन या तो लास्ट लाइन. बैलेंसेस, बैलेंस बैलेंस, बच गया इतना कैश या इतना बैंक में बचा हुआ पैसा. आर यू गेटिंग इट? कैश बुक है वो, कैश बुक में बैलेंस दिखता है ना ओपनिंग और क्लोजिंग, ये वो बैलेंस दिख रहा है आपको. तो शुरुआत के टाइम में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैश का तो डेबिट बैलेंस था, नॉर्मल बैलेंस, इट शुड गो टू लास्ट ईयर्स एसेट. तो बैंक का जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, इज इट नॉर्मल बैलेंस और ओवरड्राफ्ट? बोलो, इज इट नॉर्मल बैलेंस और इट इज ओवरड्राफ्ट? Overdraft. At the beginning it is overdraft. So where it should appear? Think. Liability. Last year Liability liability. to last year. अगर ये बैंक बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट की जगह बैंक बैलेंस होता तो कहाँ दिखता? Assets. तो शुरुआत में ओवरड्रॉन था, थोड़ा बैंक से ज्यादा विड्रॉवल था, इसके लिए क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है. तो ओवरड्राफ्ट है तो किधर दिखेगा? लास्ट ईयर लायबिलिटी. उधर लिख दो पेंसिल से मार्क करते वक्त, कैश इज लास्ट ईयर एसेट, LY asset, and बैंक ओवरड्राफ्ट बिगिनिंग में दिया, दैट इज LY liability, लास्ट ईयर लायबिलिटी. अच्छा, उसको वापस अगर चेक करना है, देखो नीचे देखो क्लोजिंग बैलेंस, देखो क्लोजिंग में कुछ ओवरड्राफ्ट है. सॉरी, क्लोजिंग में डू यू हैव एनी ओवरड्राफ्ट? नीचे देखो. नो. क्लोजिंग में दोनों नॉर्मल हो गए. बैंक भी बाय बैलेंस सीडी और कैश भी बाय बैलेंस सीडी है, कैश इन एंड कैश एट बैंक. ये दोनों कहां जाएंगे? क्लोजिंग वाले कैश और बैंक. वेयर विल यू राइट क्लोजिंग वाला कैश एंड क्लोजिंग वाला बैंक? Assets ऑफ दिस ईयर, एसेट्स ऑफ दिस ईयर. इज दिस क्लियर? अगर नीचे लास्ट लाइन पे भी ओवरड्राफ्ट होता तो कौन से बाजू दिखता? Liability. लायबिलिटी. अगर नीचे क्लोजिंग में भी ओवरड्राफ्ट होता तो करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाता. ओके करते थे ना हम लोग, टू बैलेंस कैरिड डाउन व्हिच बिकम्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बुक में. सर क्लोजिंग ओडी है तो करंट ईयर लायबिलिटी, ओपनिंग ओवरड्राफ्ट है तो लास्ट ईयर लायबिलिटी. हाँ तो सर मतलब अगर फर्स्ट लाइन में बैंक कोड ही दिखा तो वो लास्ट ईयर लायबिलिटी रहेगा ना? हाँ, फर्स्ट लाइन में दिखने का मतलब क्या है? वो ओपनिंग बैलेंस है कि क्लोजिंग बैलेंस है? लास्ट ईयर का क्लोजिंग और ये साल का ओपनिंग है. हम लोग ये साल का ही देख रहे हैं ना, ये साल का ओपनिंग बैलेंस हुआ ना, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बराबर है. ये साल का ओपनिंग हुआ ना फर्स्ट लाइन वाला, तो लास्ट ईयर का ऑटोमेटिकली क्लोजिंग हो गया, तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट लायबिलिटी. ऐसे ये साल का क्लोजिंग है वो नीचे दिखेगा, ये साल का लायबिलिटी. आपको डेटा समझ में आ रहा है? वी आर डूइंग इट फॉर द करंट ईयर, दैट इज 7/8. So that opening balance is on 1407, closing is on 31st March 08. 7/8 अप्रैल 7 से मार्च 08 का रिसीट पेमेंट दिया हुआ है. इसके बेसिस में हम लोग दो बैलेंस शीट बना रहे हैं, बिगिनिंग वाली और एंडिंग वाली. 31st March 07 की, 31st March 08 एंड 7/8 का इनकम एक्सपेंडिचर, ये करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं. मार्क करते जाओ. सैलरीज किधर जाएगा बताओ? सैलरीज, expenditure एक्सपेंडिचर. फर्नीचर किधर जाएगा? Asset. एसेट, इस साल खरीदा हुआ है. इन्वेस्टमेंट इन आ जाएगा, वेयर यू विल शो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज. एसेट. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ स्टेजिंग ड्रामा एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस. कैश इन बैंक, कैश इन हैंड. कैश इन बैंक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड किधर जाएगा? तो दैट इज एसेट ऑफ दिस ईयर. क्लोजिंग बैलेंस. ओपनिंग कैश इन हैंड वी सॉ लास्ट ईयर एसेट, ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट ईयर लायबिलिटी. सब्सक्रिप्शन वापस देखो 3 दिया है, 6, 7, 7, 8, 8, 9. व्हाट इज द करंट ईयर? व्हाट इज द करंट ईयर? पे अटेंशन ऑल ऑफ. 7/8. 7/8. तो 6/7 का 150 रुपया यहाँ पे क्यों दिख रहा है रिसीट साइड? वो क्या इंडिकेट करता है आपको? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग. last year का मिलना. किधर दिखना चाहिए इन योर आंसर? लास्ट ईयर. लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट. और कहीं दिखेगा वो? इनकम में दिखेगा वो? नो. इनकम में प्लस करना है, माइनस करना है, कुछ भी करना है? नहीं करना. नहीं करना. No. लास्ट ईयर का इनकम था वो, लास्ट ईयर का रिसीवेबल था, लास्ट ईयर के इनकम में ऐड हो चुका है. लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट में दिखा दो बस. सर ओके या
सर कभी भी अरियर्स में दिया रहता है तो वो हमेशा ऐड ही होगा ना, मतलब अगर नहीं मिलता रहता है फिर भी। किधर ऐड होगा? नहीं मतलब लास्ट मतलब कोई भी समझो अरियर्स रहता है तो वो ऐड ही होगा ना हमेशा, वो कभी लेस किसमें नहीं ऐड होगा। होगा? किसमें? जो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है उसमें। लास्ट ईयर का इनकम है ना। हाँ इनकम में ऐड ही होगा ना, जब हाँ, तक नहीं मिलता तब तक ऐड ही होता रहेगा ना वो। हर साल ऐड नहीं होता रहेगा। मतलब अरे जब तक नहीं मिलता तब तक ना, मतलब जब भी मिला तभी तो बाद में उसको इनकम में दिखा देंगे ना। क्या बोल रहा है तू? ये लास्ट ईयर का 150 रिसीवेबल था ना, तो लास्ट ईयर के इनकम में तूने ऐड कर दिया है इसको, और हाँ लास्ट ईयर एसेट में दिखा दिया है। हाँ। अभी वो करंट ईयर के इनकम में ऐड नहीं करना। अच्छा एक ही बार इनकम है, हर साल थोड़ी टैक्स भरेगा वो 150 रुपए पे तू। एक ही बार इनकम में दिखाने का लास्ट ईयर इनकम बस। बाकी एसेट में दिखते रहेगा, जब तक नहीं मिल रहा है तब तक एसेट एसेट एसेट। जिस साल मिला उस साल रिसीट, कैश, रोकड़ा। इनकम में नहीं दिखेगा, इनकम में एक ही बार जिस साल का रिसीवेबल था उस साल के इनकम में दिख जाएगा बस। 7-8 का कितना है? 14,100। ये करंट ईयर का मिला है कि लास्ट ईयर का मिला है? बोलो 14,100। 7-8 कौन सा है सब्सक्रिप्शन? करंट ईयर। करंट ईयर। ये 14,100 किधर दिखेगा? इनकम। इनकम। दिस 14,100 विल बी अ पार्ट ऑफ इनकम। ओके, मतलब नेक्स्ट ईयर का अब भी आ गया है। नेक्स्ट ईयर का अब भी आ गया है तो वो क्या हो गया? रिसीव्ड इन एडवांस हो गया 75 रुपीज। ये क्या करना है? वेर यू विल शो दिस 75? लायबिलिटी। विल यू सबट्रैक्ट दिस 75 फ्रॉम करंट ईयर्स इनकम? नो। गाइस टेल मी, विल यू सबट्रैक्ट दिस 75 फ्रॉम करंट इन ईयर्स इनकम? एडवांस। No. वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। करंट ईयर का इनकम अलग से दिया हुआ है 14,100, नेक्स्ट ईयर का अलग है। उसके बाद आउटर कॉलम में दिख रहा है 14,325। विल यू डू एनीथिंग अबाउट दैट? नो, ignore that. That is just the subtotal. Ignore that. Then you have proceeds from drama. Proceeds from drama, that is income. हर साल आ रहा है ड्रामा एक्सपेंस, ड्रामा रिसीट। एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो, कुछ दिया है क्या एंट्रेंस फीस के बारे में? Do you have any Capital information on entrance fees? इधर दिया है। हाँ, point number 4. Entrance fees are to be treated as capital receipts. So where are you supposed to show income और capital fund में add? क्या करना है? कैपिटल फंड में ऐड। कैपिटल फंड में ऐड करना है। देन सैलरी ऑफ 700 फॉर द करंट ईयर इज अनपेड। अरे सॉरी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज रिसीट साइड पे, दैट इज इनकम। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, देखो पहले भी एक बार किया था इफ यू रिमेम्बर। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओके, वहां पे जो वैल्यू दिया है ना 200 रुपीज, पुट अ सर्कल ऑन दैट। ऑल ऑफ यू पुट अ सर्कल ऑन दैट 200। What is that value? Sale value or book value? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कहीं पर भी सेल वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होता। सर्कल करो और इग्नोर मारो। ओके, सेल वैल्यू कहीं पर भी, ये इतने में बेचा है तुमने, 200 रुपए में बेचा है फर्नीचर। अभी सर्च फॉर बुक वैल्यू, पूरे सम में सर्च करो, कहीं पर भी हो सकता है ये इंफॉर्मेशन। सर्च करो, कहीं बुक वैल्यू दिया है फर्नीचर सोल्ड का, बुक वैल्यू कहीं पर भी? वैल्यू 200 नहीं, वो तो लास्ट ईयर का वैल्यू है, वो नहीं है, कुछ नहीं है। सोल्ड तो फर्नीचर का लास्ट ईयर का ही तो बेच रहे हैं हम लोग। लास्ट ईयर का बेच रहे हैं बराबर है, बट लास्ट ईयर तो 500 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है पर पूरा दिया है 200 का है। दिया है 200 का, वो उसका मतलब वो सेल फर्नीचर का बुक वैल्यू नहीं है। सर वो तो ऐसा भी हो सकता है ना, 200 में से 50 का ही बेचा लेकिन मार्केट में 200 मिल गया उसका। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग। वो डजंट मीन दैट दैट 200 इज द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड। आर यू गेटिंग दैट? वो 200 तो क्या बता रहा है, इतना फर्नीचर आपके पास था लास्ट ईयर में। जरूरी नहीं है कि वही सोल्ड फर्नीचर की बुक वैल्यू हो। तो सोल्ड फर्नीचर की बुक वैल्यू क्लियर कट इंफॉर्मेशन होगा सम में। जैसे कि हमने एक सम किया था, आपको दिखा देता हूं वापस। सम नंबर, और अगर पूरा फर्नीचर नहीं बेच रहे तो वो लोग मेंशन करेंगे ना? नहीं, कुछ मेंशन नहीं करेंगे। आपको मैं बताता हूं कैसे देखना है सम में। देखो सम नंबर 17 देखो सब लोग।
सम नंबर 17 देखो, रिसीट साइड लास्ट आइटम, सेल ऑफ क्रॉकरी 200 रुपया दिख रहा है रिसीट में और बुक वैल्यू है 120, दिखा? ये हुआ आपका सोल्ड एसेट का बुक वैल्यू, ऐसा देगा, ऐसा इंफॉर्मेशन चेक करने का। और एक सम बताता हूं आपको, देखो सम नंबर 22 देखो सब लोग, रिसीट साइड का सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट आइटम, सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 इज द सेल वैल्यू, बुक वैल्यू 15,000, दिखा कि नहीं? 10,000 इज द सेल वैल्यू, बुक वैल्यू 15,000। ऐसा सोल्ड एसेट का दिया रहेगा, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगा बुक वैल्यू का। सम नंबर 13 देखो सब लोग, सम नंबर 13, प्रॉब्लम नंबर 13, रिसीट साइड का थर्ड लास्ट आइटम, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 2000, वो 2000 सेल वैल्यू है, बट नीचे पढ़ोगे ना एडजस्टमेंट नंबर ई में, ई फॉर एलिफेंट, फर्नीचर नहीं, नॉट ई, सॉरी, एडजस्टमेंट नंबर एच एडजस्टमेंट, एच फॉर हैट, book value of furniture sold during the year 07 was 3,500, दिख रहा है आपको? So whenever you sell any asset, they need to specify वो एसेट जो बेचा वो कितने का था, उसकी बुक वैल्यू देनी जरूरी है। समझ में आ रही है बात? लास्ट ईयर की बुक वैल्यू से उसका लेना देना नहीं है, जो बेचा हुआ एसेट है उसकी बुक वैल्यू पता होनी चाहिए, वो कितने का था, ठीक है? अब ये सब में सर्च करो, कहीं पे भी दिया है सोल्ड एसेट का बुक वैल्यू? नहीं दिया है, अभी दिया ही नहीं है, तो क्या अज्यूम करना है? बुक वैल्यू इज इक्वल टू आउटर कॉलम वाला अमाउंट। हाँ, जो 200 रुपया दिख रहा है ना आपको, जो 200 रुपया दिख रहा है ना सेल वैल्यू, अज्यूम दैट इज बुक वैल्यू, अज्यूम दैट इज बुक वैल्यू, ओके? मतलब जितने का था उतने में बेच दिया। तो मुझे बताओ कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ यहाँ पे आपका? नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जितने का था उतने में बेचा। तो एंट्री क्या होता है आपका? कैश टू फर्नीचर। एंट्री होता है आपका कैश टू फर्नीचर। 200 का था, 200 में गया, तो कैश में तो दिख रहा है टू फर्नीचर 200 रुपया। अभी फर्नीचर में क्या करना है? बाय कैश। मतलब फर्नीचर बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होगा। कम होएगा। तो प्लस करने का कि माइनस? माइनस। लेकिन क्या माइनस करना है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितना है? 200। क्योंकि क्वेश्चन में बुक वैल्यू नहीं दिया था, हमने अज्यूम किया सेल वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। इज दिस क्लियर? लेकिन सुनो ध्यान से सब लोग, यही सब में अगर दिया होता कि बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज 150 रुपीज, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज 150, व्हाट डज दैट इंडिकेट? कि 150 का फर्नीचर आपने 200 में बेचा है। तो आप फर्नीचर में से कितना माइनस करोगे? 150। और 50 रुपया किधर दिखाओगे? इनकम, प्रॉफिट, इनकम साइड दिखाओगे एज योर प्रॉफिट। यही मैं अगर आपको बोल दूं कि बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड इज 250, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड इज 250, तो फर्नीचर से कितना माइनस करोगे? 250। और बेचा 200 में ना, तो क्या हो गया? लॉस, एक्सपेंडिचर दिखेगा, एक्सपेंडिचर में दिख जाएगा आपका। ये कंसेप्ट समझ रहे हैं आपको? तो एसेट में हमेशा यू विल डिडक्ट योर बुक वैल्यू। इज इट क्लियर? नेवर योर सेल वैल्यू, नेवर योर सेल वैल्यू। बट अगर सेल वैल्यू सॉरी बुक वैल्यू के बारे में कुछ नहीं दिया है, बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट कितने का था ये नहीं दिया है, तो अज्यूम सेल वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, कितने का था उतने में बेचा। तो ये सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 200 को सर्कल करके दिखाना, बुक वैल्यू हम लोग माइनस करेंगे एसेट में से, और प्रॉफिट लॉस है नहीं यहाँ सर। फर्नीचर ऑफ 150 सोल्ड फॉर 200। तो फर्नीचर में से 150 माइनस होएगा। फर्नीचर में मतलब जितने में बेचा उतना ही माइनस होगा ना? जितने का बेचा, जितने का बेचा वो कॉस्ट है, बुक वैल्यू, उतना ही माइनस होगा। तूने 1000 रुपए का फर्नीचर है 1 लाख रुपए में बेचा, बैलेंस शीट में तो 1000 का दिख रहा है, तो 1000 में से 1 लाख माइनस कर सकता है क्या? नहीं ना, तो 1000 ही माइनस होगा बुक वैल्यू, बाकी 99,000 प्रॉफिट है तुम्हारा। या वैसे 1000 रुपए का फर्नीचर 1 रुपए में बेचा, बैलेंस शीट में 1000 दिख रहा है, 1 रुपए में बेचा, तो 1000 में से 1 रुपया माइनस करेगा कि 1000 रुपया बुक वैल्यू, जितने का था उतने में जाएगा ना, और 999 रुपीज का लॉस आएगा, हो जाएगा एक्सपेंडिचर। अभी कमिंग टू द एडजस्टमेंट्स,
द सोसाइटी हैज 1500 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 12। ये क्यों दिया आपको इन्फॉर्मेशन? 1500 मेंबर्स पेइंग 12 का मतलब क्या हुआ? आपको इस साल कितना होना चाहिए इनकम? 1500 into 12, 18,000 की इनकम होनी चाहिए ये साल। लेकिन अफसोस मिला कितना है आपको? देखो 14,000. 14,100. You have received 14,100. What does that indicate? Outstanding. 3,900 is outstanding. For which year? This year. Current. This year, current year. So what are you supposed to do? Add to subscription. Subscription and assets. Add to subscription and assets. बात बैठा दिमाग में सबके? अभी किया था, लास्ट 2 सम में किया था. Then subscriptions rupees 100 pertaining to the year 6-7 are still in arrears. वापस आ गया, देखो still in arrears. अब सब लोग एकदम ध्यान से देखो डेटा को. ओके, ऑल ऑफ यू लुक एट द डेटा एंड ऊपर देखो रिसीट साइड का सब्सक्रिप्शन देखो, नीचे देखो स्टिल इन अरियर्स, और मुझे बताओ लास्ट ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 250. लास्ट ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 250. ऑल ऑफ यू चेक, सबको आना चाहिए. देखो रिसीट साइड पे कितना दिख रहा है ऊपर? लास्ट ईयर का कितना मिला है रिसीट साइड पे? 150 मिला है. उसका मतलब क्या? ये लास्ट ईयर का पैसा ये साल मिला है ना, तो ये तो लास्ट ईयर पेंडिंग ही था, बाकी ही था मिलना, तो वो 150 तो था ही. और क्या दिया एडजस्टमेंट में? 100 इज स्टिल इन अरियर्स. स्टिल इन अरियर्स का मतलब लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था, ये साल भी मिलना बाकी है. तो लास्ट ईयर टोटल कितना मिलना बाकी था? 250. 150 plus 100, that comes to 250. Does that 150 include that 100? No. Why? It's still in arrears. Still in arrears मतलब अभी भी नहीं मिला है, ये साल खत्म होने तक नहीं मिला है. उसके अंदर पड़ा होता तो मिल चुका होता. समझ में आ रही है बात? तो लास्ट ईयर 250, जैसे इन द प्रीवियस सम लास्ट ईयर 105 मिलना बाकी था और ये साल 20 रुपया मिलना बाकी था लास्ट ईयर का. सेम वे इन दिस सम लास्ट ईयर कितना मिलना बाकी था? तो 250, 150 प्लस 100, जिसमें से 150 रिसीव किया तो 100 इज स्टिल इन अरियर्स, हो जाएगा करंट ईयर एसेट. तो बेसिकली 100 रुपए का दो इफेक्ट क्या होगा? लास्ट ईयर एसेट, लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट. लिख दो उधर LYA CYA. वैल्यू ऑफ स्टेशनरी ऑन हैंड ऑन 31st March 07 was 200 and on 31st March 08 is 150. इसका मतलब क्या है? ये किसका इंफॉर्मेशन दिया है? स्टॉक्स. दीज आर स्टॉक्स. ओके, वैल्यू ऑफ स्टेशनरी का मतलब होता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. तो व्हाट इज 31st March 07? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक? Closing. 07. सर 07 तो ओपनिंग होगा ना? हाँ, 07 इज ओपनिंग एंड 31st March 08 इज क्लोजिंग. तो मेरे को पहले बताओ क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक का माइनस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एसेट. Minus from printing and stationery and asset. This you have done many times. Stock of stationery. Less from expense and assets. बहुत बारी किया हुआ है आपने. Opening stock का दो इफेक्ट क्या होगा? चलो. Last year balance sheet and this year add to printing and stationery. Very good. This year add to printing and stationery and last year asset. क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का एसेट था. हाँ, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वो, तो ये साल यूज करोगे ना. गुड्स क्या करते थे ना ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड, एड. समझ में आ रही है? स्टॉक्स आर नथिंग बट प्रीपेड एक्सपेंस. करंट ईयर प्रीपेड क्या करते हो? लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट. लास्ट ईयर प्रीपेड क्या करने का? लास्ट ईयर एसेट एंड एड टू एक्सपेंस. क्यों ऐड? पैसा लास्ट ईयर दिया था, एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर, तो यू ऐड टू एक्सपेंस. समझ में आ रहा है? सर वापस प्रीपेड एक्सपेंस है. लास्ट ईयर का प्रीपेड कितना है? देखो 200 रुपया लास्ट ईयर का प्रीपेड है. मतलब आपने लास्ट ईयर क्या किया होगा? लेस किया होगा एक्सपेंस में से और एसेट में दिखाया होगा. वो 200 रुपया जो प्रीपेड दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक 200. व्हाट डज दैट मीन? आपने इन द प्रीवियस ईयर आपने 200 रुपया ये साल का पे कर दिया. 200 रुपया आपने ये साल का पे कर दिया इन द प्रीवियस ईयर. बट एक्सपेंस कौन से साल को बिलोंग कर रहा है? दिस ईयर.
तो दिस ईयर का एक्सपेंस में ऐड कर देना। गॉट इट? वैसे ही करंट ईयर के एंड में जो 150 बचा है वो क्या, दिस ईयर यू हैव पेड 150 फॉर नेक्स्ट ईयर। 150 रुपीज आपने नेक्स्ट ईयर का रोकड़ा ये साल दे दिया, तो वो क्या करो, ये साल के एक्सपेंस में से माइनस, क्योंकि ये साल का एक्सपेंस को बिलोंग नहीं करता है। पेमेंट में दिख रहा है, पेमेंट में वो 150 पड़ा हुआ है आपका, उसमें से हटाओ, ये साल का नहीं है वो एक्सपेंस, ये आपको नेक्स्ट ईयर काम आएगा, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा ये 150। गॉट इट? सो प्रीपेड बोलो या ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बोलो, वंस अगेन लुक एट द स्क्रीन। क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है आपको, क्लोजिंग स्टॉक मतलब दिस ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में से लेस करो, एसेट में दिखा दो, डजंट बिलोंग टू दिस ईयर। ओपनिंग स्टॉक क्या करोगे आप, व्हाट विल द टू इफेक्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक? लेस फ्रॉम एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक Add to add expense. to expense And last year. and last year asset. क्लोजिंग स्टॉक इस करंट ईयर का प्रीपेड, इस साल का एक्सपेंस नहीं है तो हटाते हैं। ओपनिंग स्टॉक तो यही साल का एक्सपेंस है, लास्ट ईयर का प्रीपेड है, तो ये साल के एक्सपेंस में ऐड एंड लास्ट ईयर एसेट। इज इट क्लियर? सर तो इसमें करना क्या हम लोग को? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है। ओपनिंग स्टॉक ऐड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सर नेट एंट्री ले ले, नेट नहीं, पूरा दिखाने का, ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग। एंड ओपनिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट लास्ट ईयर एसेट, क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट करंट ईयर एसेट। तो इफेक्ट लिखो वहां पे, 200 का इफेक्ट लिखो, ऐड टू स्टेशनरी एंड एसेट ऑफ लास्ट ईयर, ऐड टू स्टेशनरी एंड एसेट ऑफ लास्ट ईयर। एंड 150 का लिखो, लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड एसेट ऑफ करंट ईयर, लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड एसेट ऑफ करंट ईयर। देन सैलरी ऑफ 700, एंट्रेंस फीस तो हमने देखा कैपिटल रिसीट है। सैलरी ऑफ 700 फॉर करंट ईयर इज अनपेड। करंट ईयर का अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग। क्या करना है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी Add to salary, ऐड टू liability. सैलरी एंड लायबिलिटी। ये करंट ईयर का पेएबल है, ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। देना बाकी है, एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर। फिर दिया हुआ है बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 07। बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 07 मतलब विच बैलेंसेस, करंट ईयर और लास्ट ईयर? लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट पहले कहाँ दिखेगा, ये लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट, Last year asset. देन ब्रिंग इट टू करंट ईयर एसेट, लॉन्ग टर्म आइटम। फिर है बिल्डिंग, ये भी लास्ट ईयर एसेट, ब्रिंग इट टू दिस ईयर। फिर है फर्नीचर, ये भी लास्ट ईयर एसेट, ब्रिंग इट टू दिस ईयर। फिर उस पे सेल परचेज डेप्रिसिएशन। ओके, इन तीनों का इफेक्ट है लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट, LYA CYA, ऑल द थ्री एसेट, इन्वेस्टमेंट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, LYA CYA। Depreciate building and furniture by 10, 2.5 and 5. What are the two effects of depreciation? Less from assets and expenditure. Expense. Dots देना है, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाले पे एक डॉट, लास्ट ईयर वाले पे एक डॉट, करंट ईयर वाले पे एक डॉट, लास्ट ईयर वाले पे एक डॉट, स्टेशनरी पे 2 डॉट्स, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों है, एंट्रेंस फीस पे एक डॉट, सैलरीज पे एक डॉट, इन्वेस्टमेंट्स पे एक डॉट। क्यों किया है मैंने इन्वेस्टमेंट पे एक डॉट, कोई बता सकता है? लास्ट ईयर का था, ये साल ऐड करेंगे। ठीक है, डॉट क्यों किया है लेकिन? इंटरेस्ट। ये साल वाला ऐड करना है आपको। ये साल आपने देख रहा है पेमेंट में और परचेज किया, इन्वेस्टमेंट, SPD, सेल परचेज डेप्री, 3 एडजस्टमेंट पॉसिबल है एसेट पे। तो इन्वेस्टमेंट पे परचेज का एडजस्टमेंट है, इसलिए डॉट, इन्वेस्टमेंट पे डॉट, बिल्डिंग पे एक डॉट। क्यों बिल्डिंग पे एक डॉट? Depreciation. डेप्री है, सेल परचेज नहीं है, खाली डेप्री है। फर्नीचर पे 3 डॉट्स, 3 डॉट्स ऑन फर्नीचर। कैन यू टेल मी 3 डॉट्स, व्हाई 3 डॉट्स? दिस ईयर फर्नीचर परचेज, सेल एंड डेप्रिसिएशन। सेल भी है, डेप्रिसिएशन भी है, SPD तीनों है। दिस इज एंटायर फुल फ्लेजेड सम ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल परचेज डेप्री, 3 डॉट्स ऑन फर्नीचर। ओके, सेल भी है, परचेज भी है और डेप्रिसिएशन भी है। इज दैट क्लियर? ओके, कम ऑन, लेट्स डू इट।
साथ में करते जाओ। सबसे पहला बैंक ओवरड्राफ्ट, पेमेंट साइड से शुरू करना। बैंक ओवरड्राफ्ट, वेयर यू विल पुट बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट जाएगा आपका लास्ट ईयर्स liability. Bank overdraft will go to last year's liability. लास्ट ईयर का मतलब 07 है, ये 06 में 08 में मत कर देना, 31 मार्च 07। ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि इस साल का ओपनिंग बैलेंस है वो, इस साल के शुरू में ओवरड्राफ्ट था, मतलब लास्ट ईयर के एंड में ओवरड्राफ्ट था। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी में 2500 ये ओवरड्राफ्ट दिख रहा था, इतना उधारी था अपना, देना बाकी था बैंक को। फिर आता है आपका सैलरीज। सैलरीज आपने इतना पे किया है करंट ईयर में, तो गो टू एक्सपेंडिचर, राइट डाउन 2 सैलरीज। चेक, डू यू हैव एनी एडजस्टमेंट, एनी डॉट ऑन सैलरीज? क्या डॉट है देखो, आपने पे किया है 5300, बट इफ यू सी एडजस्टमेंट नंबर 5 देयर इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो देयर इज आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब वो आपके सैलरी में ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज करंट ईयर का एक्सपेंस है, करंट ईयर को बिलोंग करता है, 700 रुपया ऐड कर। अच्छा बताओ, ये आउटस्टैंडिंग कभी ऊपर दिख सकता है पेमेंट साइड पे? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कभी ऊपर पेमेंट साइड दिख सकता है? नॉट पॉसिबल। ऊपर तो पेड दिख रहा है ना, पेड, रोकड़ा पेड दिख रहा है, तो यू कैन नॉट शो करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग एज पेमेंट, इट्स नॉट पॉसिबल। वो एडजस्टमेंट में ही दिखेगा। तो ऐड टू सैलरी, सेकेंड इफेक्ट हम लोग देंगे एंड में लायबिलिटी। फिर दिया है आपको फर्नीचर। अभी एकदम ध्यान से देखना, फर्नीचर हाउ टू प्रेजेंट इट। फर्नीचर पे 3 एडजस्टमेंट है। पहले तो बताओ मुझे, लास्ट ईयर कुछ फर्नीचर था क्या? वाज देयर एनी फर्नीचर इन द लास्ट? यस सर। यस। कितने का Yes. था? पढ़ो आप। 200। तो वो फर्नीचर जाएगा लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट, लिख दो 31 मार्च 07 के एसेट में 200। फिर वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, मतलब ये साल का ओपनिंग बन के आएगा। फिक्स्ड एसेट है तो जरूर आएगा। तो फर्नीचर 200 इन द इनर कॉलम। फर्नीचर 200 लास्ट ईयर का मैंने लाया करंट ईयर में। अभी इस पे एसपीडी, यही ऑर्डर फॉलो करना है। पहले एस सेल, फिर परचेज, फिर डेप्री। आगे पीछे मत कर देना, पहले डेप्री मत कर देना, सब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अजम्पशन है कि कुछ डेट नहीं दिया अगर सेल और परचेज का, तो वी अज्यूम दैट एनी सेल और परचेज ऑफ एसेट हैपेंस ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर। तो सबसे पहले डेट पे सेल हुआ है, फिर परचेज कर दिया फर्स्ट डेट पे, और फिर डेप्रीसिएशन फुल ईयर का आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले सेल करना। तो सेल क्या करोगे, प्लस करना है कि माइनस? Minus. सेल माइनस करना है। अच्छा, सेल के वक्त क्या माइनस करना है, बुक वैल्यू की सेल वैल्यू? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। सम में हमने चेक किया, बहुत कोशिश की, लेकिन बुक वैल्यू दिखी नहीं। सोल्ड फर्नीचर की बुक वैल्यू नहीं दी थी, तो व्हाट डिड वी अज्यूम? सेल वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू बुक वैल्यू, राइट? सो वी टुक द सेम 200 रुपीज। तो सेल मतलब लास्ट ईयर का 200 पूरा का पूरा बेच दिया हमने। जरूरी नहीं है हर सब में लास्ट ईयर का पूरा बेच दोगे। लास्ट ईयर 500 भी हो सकता है, 500 में से 200 बिका, 300 बचा भी हो सकता है। ये सब में कोइंसिडेंटली लास्ट ईयर का जितना था पूरा बेच दिया हमने, पूरा का पूरा सेल कर दिया। ठीक है, तो 200 माइनस 200 जीरो हो गया। फिर आता है परचेज। ये साल का परचेज ऑफ कहाँ दिखेगा ये परचेज? सेल और परचेज कहाँ दिखेगा आपको? रिसीट और पेमेंट। रिसीट और पेमेंट। रिसीट में सेल दिख रहा था, पेमेंट साइड देखो परचेज दिखेगा, इतना पैसा दिया होगा आपने फर्नीचर का। दिख रहा है आपको फर्नीचर 2000 रुपया, तो वो ऐड कर दो। तो लास्ट ईयर का एसेट 0 हो चुका था, 2000 का करंट ईयर का और आया। कब खरीदा है ये फर्नीचर? आपने कुछ इन्फो नहीं दिया है, तो व्हाट डू यू अज्यूम? When have you bought this furniture? If nothing is specified, you bought it on the first date of the year. So full year का डेप्री लग जाएगा। तो थर्ड एडजस्टमेंट, लेस डेप्रीसिएशन। लेस डेप्रीसिएशन at what rate? What is the rate of depre? 2.5%. So 2.5% of 2000, how much that comes to?
5%. 5%, sir. Sir, 5% है, 2.5 नहीं है. 5% करो कैलकुलेट हाउ मच दैट कम्स टू. और इसमें हम लोग ऐड क्यों नहीं करते? क्या ऐड नहीं करते? डेप्री 2000 और 200 को ला परचेज था ना. मैंने ऑर्डर बोला ना, सुना है ऑर्डर? SPD. व्हाट इज SPD? परचेज और डेप्रिसिएशन. तो पहले क्या करना है? पर सर हम लोग तो ये अज्यूम कर रहे हैं ना, पर अगर पहले परचेज ही होएगा ना सर, फर्स्ट डे पे तो सेल नहीं होता ज्यादातर. मैंने पहले ही बोला अजम्पशन है फर्स्ट डे सेल, फर्स्ट डे परचेज. फर्स्ट डे पे ही सेल अज्यूम करना है. कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिए तो फर्स्ट डे पे ही सेल करना है. अब मुझे सोच के बताओ, अगर तुमने पहले परचेज दिखाया, समझो दिखा भी दो, ओके, आंसर सेम आएगा. बट जो सेल हो रहा है ना, सेल वो फर्स्ट डेट पे हो रहा है, तो वो जो 2000 वाला है ना, उसमें से हम लोग नहीं बेच रहे हैं. जो लास्ट ईयर वाला आ रहा है उसमें से बेच रहे हैं. तुम इमेजिन करो, तुमने आज ही 2000 का खरीदा, आज ही 200 का बेचा. डज इट मेक सेंस? 2000 में से 200 सेल करना, सेम डे पे परचेज किया, सेम डे पे बेच दिया. डज इट मेक सेंस? नो. सो ये जो सेल हो रहा है ना, ये कौन सा फर्नीचर का सेल हुआ होगा? लास्ट ईयर से ही आया हुआ फर्नीचर का सेल होता है, क्योंकि सेल एंड परचेज बोथ आर हैपनिंग ऑन द फर्स्ट डेट. तो सेल इज आल्सो हैपनिंग ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर. तो लास्ट ईयर से जो फर्नीचर आया उसी में से टुकड़ा बेचा या पूरा बेचा, फिर आपने करंट ईयर का परचेज किया. भले ही दोनों सेम डेट पे हो रहा है, बट स्टिल फॉलो दिस ऑर्डर. पहले सेल खत्म करो, फिर परचेज, फिर डेप्री. क्यों ऐसा? क्योंकि करंट ईयर का परचेज में से बेच नहीं रहे हो तुम, लास्ट ईयर से जो एसेट आ रहा है उसमें से सेल कर रहे हो. ओके, दैट इज द लॉजिक. लास्ट ईयर से जो एसेट आ रहा है उसमें से सेल कर रहे हो. लास्ट ईयर का कब से आ रहा है वी डोंट नो, ऑब्वियसली सेल उसी में से हुआ रहेगा. करंट ईयर का तो फर्स्ट डेट पे खरीदा है ना, तो सेम डे पे परचेज किया, सेम डे पे बेच दिया. डजंट मेक सेंस. व्हाई विल डू दैट? ऑलराइट, सो अजम्पशन याद रखना. हाँ, सेल एंड परचेज हैपेंस ऑन फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर. ओके, तो पहले सेल लास्ट ईयर का लेके आओ, फिर सेल, फिर परचेज, फिर डेप्री. या नहीं, हाँ सर कुछ नहीं. ओके, सो पहले सेल, फिर परचेज, फिर डेप्री. अभी डेप्रीसिएशन किया हमने माइनस. अभी तक के सब में ऐड करते थे ना हम लोग डायरेक्टली, क्योंकि सेल नहीं होता था. सिंपल, सेल नहीं होता था तो डायरेक्टली परचेज करते थे, तो ऐड करने का, फिर डेप्री करते थे तो माइनस करने का. इधर तो तीनों है, ये पहला समय जहाँ पे तीनों एडजस्टमेंट है, सेल भी है, परचेज भी है, डेप्री भी है. तो पहले सेल, देन परचेज, देन डेप्रीसिएशन. ओके, assumption क्या है? सेल एंड परचेज हैपेंस ऑन फर्स्ट डेट ऑफ दिस ईयर. मतलब 1407 को ही सेल हुआ है और 1407 को ही परचेज किया है. और जो परचेज किया है 2000, उसको पूरा साल यूज किया है, इसलिए आई हैव टेकन 5% फुल ईयर का डेप्रीसिएशन ऑन दैट 2000. ओके, 2000 में से कुछ भी नहीं बिका है, जो बिका है वो लास्ट ईयर के एसेट में से बिका हुआ है. ठीक है. नाउ उसके बाद फर्नीचर के बाद पढ़ो इन्वेस्टमेंट. देखो अभी इन्वेस्टमेंट भी फिक्स्ड एसेट था, तो इन्वेस्टमेंट कैसे दिखाओगे आप? लास्ट ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट था, चेक करो पहले. वॉज देयर एनी इन्वेस्टमेंट इन द लास्ट ईयर? प्लीज चेक. चेक. 4500 नीचे दिखेगा, दिख रहा है इंफॉर्मेशन में, पॉइंट नंबर 6. तो लास्ट ईयर के एसेट में दिखाओ पहले इन्वेस्टमेंट 4500. वो 4500 को लेके आओ इन द करंट ईयर. लास्ट ईयर से लेके आओ इन द करंट ईयर. ठीक है. अभी जैसे आपने फर्नीचर बेचा है ना, वैसे इन्वेस्टमेंट भी बेच सकते हो. दिख रहा है कुछ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? प्लीज चेक. सॉरी, डू यू सी एनी इन्वेस्टमेंट? नो, तो सेल नहीं है. डू यू सी एनी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट? डू यू फाइंड एनी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट? Check. Purchase of investment, can you see on the payment side? So what are you supposed to do? Add investment purchased. Investment purchased कितना है? करंट ईयर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज लिखो या इन्वेस्टमेंट परचेज लिखो 4000. अब कुछ राइट ऑफ है, डेप्रीसिएशन है ऑन इन्वेस्टमेंट, प्लीज चेक. होता तो वो भी कर लेते, कुछ नहीं है, तो ये 8500. अब समझ आया? सेम चीज मैंने की है. लास्ट ईयर का एसेट करंट ईयर में लाया, फिर सेल, फिर परचेज, फिर डेप्रीसिएशन. तीसरा एसेट एक और है
फर्नीचर तो नहीं है, सॉरी, हो गया। इन्वेस्टमेंट के बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे जाओ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किधर जाएगा, तो एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब देखो ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में दिख रहा है 800 रुपया, ठीक है। ये 800 रुपया करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, इतना रोकड़ा दिया है आपने, इतना कैश दिया है, कैश। इसमें 2 पॉइंट नीचे दिया है एडजस्टमेंट नंबर 3 में। स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टेशनरी ऑन हैंड ऑन 31st March 07 was 200 एंड 31st March 08 was 150। आप ऐसे सोचो कि आपने ये साल 800 रुपए के पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर खरीदे हैं, बुक्स खरीदे हैं, फाइल्स खरीदे हैं, लेकिन 200 रुपए के बुक्स, फाइल्स लास्ट ईयर के बच गए थे, तो वो आप कभी यूज करते? लास्ट ईयर का बचा हुआ 200 का कभी यूज करते आप? ये साल करंट ईयर में यूज करते हैं ना। तो सबसे पहला वही यूज करते कि नया खरीदने भाग जाते आप, सबसे पहला वही यूज करते ना 200 वाला। So that's why those 200 rupees which you have paid last year but you have not used, those 200 you have used it in the current year, so they belong to current year. So that is what is opening stock, that is what is last year's prepaid. So you add those to your current year expense. Add opening stock, कितना है 200 रुपया, ये 200 रुपया करंट ईयर का एक्सपेंस है, ठीक है। अब सिचुएशन प्रैक्टिकली क्या हुआ, लास्ट ईयर का बुक्स, फाइल्स 200 रुपया आपने वापरा, ठीक है, वो खत्म हो गया। फिर आपने जाके दुकान से 800 रुपए का और स्टेशनरी खरीद के लाया, ठीक है, लेकिन वो 800 में से एंड ऑफ द ईयर 150 रुपए का और बच गया। अब ये 150 रुपए का कब यूज होगा, 150 रुपीज का व्हेन यू विल बी यूजिंग दिस नेक्स्ट ईयर। सो आउट ऑफ दैट 800, पूरा 800 करंट ईयर में यूज नहीं हुआ। पूरा 800 अगर यूज हो जाता ना तो क्लोजिंग स्टॉक दिखता ही नहीं आपको, क्लोजिंग स्टॉक दिखता ही नहीं, तो पूरा एक्सपेंस 1000 रुपीज हो जाता करंट ईयर का। क्लोजिंग स्टॉक में 150 दिखने का रीजन क्या है कि 150 रुपीज करंट ईयर में यूज हुआ ही नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर काम आएगा। तो ये 800 में रहने दूं कि इसमें से माइनस करूं? व्हाट डू यू थिंक? Should I subtract that 150 from 800 or let it? I should subtract because this is not current year's expense na. This I will be using in the next year. Are you understanding? तो नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएगा। जैसे लास्ट ईयर का 200 ये साल में ऐड किया, वैसे ये साल का 150 नेक्स्ट ईयर में ऐड कर दोगे। तो ये साल में से हटाओ उसको, ये साल का एक्सपेंस नहीं है, वो 800 में पड़ा है, ये साल का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए हटा रहा हूं मैं। तो 150 रुपीज माइनस कर दिया मैंने। तो व्हाट इज माय करंट ईयर्स यूज्ड स्टेशनरी? 200 रुपया लास्ट ईयर का वापरा, इस साल के 800 में से खाली 650 वापरा, तो 200 और 650 कितना होता है? 850। ऑटोमेटिकली 850 आएगा आउटर कॉलम। ये लॉजिक है इसका। डिड यू अंडरस्टैंड? लास्ट ईयर का 200 यूज किया है और करंट ईयर का 650 यूज किया है, 150 रुपया नेक्स्ट ईयर काम आएगा। What will you do with this 150 in the next year? Tell me now. What will you do with this 150 in the next year? Opening stock. Add to printing. Add to stationery of next year. फिर और purchase, फिर और बचा closing stock तो minus, and the cycle will continue. Same done hundreds of times while doing final accounts. In case of goods, opening stock, trading debit, purchase, trading debit, closing stock, trading credit. ये क्लोजिंग स्टॉक बनेगा ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट, परचेज, ट्रेडिंग डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या? लास्ट ईयर का प्रीपेड, ये साल यूज हुआ। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या? ये साल का प्रीपेड, ज्यादा पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर काम आएगा। समझ में आ रहा है बात? सर ये साल का ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखेगा ना? एसेट्स में दिखेगा एज अ क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड इफेक्ट जाएगा ना एडजस्टमेंट का। ओपनिंग स्टॉक विल गो टू लास्ट ईयर एसेट, क्लोजिंग स्टॉक विल गो टू करंट ईयर एसेट। परफेक्ट। एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट हम लोग वापस देंगे, अभी नीचे आएंगे तभी। फिर देखो क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ स्टेजिंग ड्रामा। कॉस्ट ऑफ स्टेजिंग ड्रामा इज एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ स्टेजिंग ड्रामा इज एक्सपेंस। कितना है ये? 1500। देन सन्ड्री एक्सपेंस, तो टू सन्ड्री एक्सपेंस इज एक्सपेंडिचर, दैट इज 1300। Then we have cash in hand and cash at bank. Which cash in hand, cash at bank is this? Opening or closing? बताओ. Which cash in hand, cash at bank is this? Closing. Closing.
एंडिंग दिया है ना, क्लोजिंग बैलेंस एंड में डेबिट माइनस क्रेडिट करके जो मिलता है, तो वो डाल दोगे आप कौन से बैलेंस शीट में, करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड. कैश इन हैंड इज 175, कैश एट बैंक इज 2500. ठीक है. ओपनिंग कैश इन हैंड और ओपनिंग ओवरड्राफ्ट, देखो ओपनिंग ओवरड्राफ्ट हमने लिखा हुआ है, ओपनिंग कैश इन हैंड बाकी. ओपनिंग कैश इन हैंड किधर जाएगा, तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड लिख दो 1750. लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड 1750. ये ओपनिंग बैलेंस एक ही इफेक्ट है, लास्ट ईयर एसेट. देन सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तीनों दिया है, कल, आज और कल. तो कल वाला सब्सक्रिप्शन 150 रुपीज. ओके, ये क्या इंडिकेट करता है, 150 लास्ट ईयर का रिसीवेबल था. तो किधर दिखाओगे, लास्ट ईयर बैलेंस शीट 31 मार्च 07 के बैलेंस शीट में जाओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाओ, बट देयर इज अ डॉट. व्हाट इज अ डॉट, चेक लास्ट ईयर का क्या एडजस्टमेंट है. देखो क्या दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 pertaining to the year 6-7 are still in arrears. What do you mean by still in arrears? लास्ट ईयर भी बाकी था और ये साल भी बाकी है, बराबर है. तो लास्ट ईयर कितना मिलना बाकी था टोटल, लास्ट ईयर कितना मिलना बाकी था टोटल, 250. कैसा 250, लास्ट ईयर का 150 तो अभी मिला है और 100 अभी मिलना बाकी है, मतलब लास्ट ईयर टोटल 250 मिलना बाकी था. तो 100 प्लस 150, 250 मिलना बाकी था, जिसमें से 100 रुपया अभी भी मिलना, दैट विल गो टू दिस ईयर्स एसेट. अभी 7-8 इज करंट ईयर का जो पैसा आया. करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन किधर जाएगा, करंट ईयर का पूरा करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इनकम में जाएगा. तो लिख दो इनकम में बाय सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है करंट ईयर का, 14,100. ये रोकड़ा है, रोकड़ा, इतना करंट ईयर का इनकम नहीं है, ये रोकड़ा है. अभी देखो उधर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, देयर आर 1500 मेंबर्स पेइंग 12 ईच. तो आइडियली इनकम कितना होना चाहिए, 18,000. जो मेंबर का है वो आउटर कॉलम डाल देने का चुपचाप. तो 18,000 होना चाहिए, जिसमें से करंट ईयर का मिला है 14,100, विच मीन्स इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर. कितना है आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, 3,900. 3,900 अभी भी मिलना बाकी है. ये समझ आया. और 089 मतलब कौन सा है, वो नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का आ गया अभी. तो क्या माइनस करूं इसमें से, शुड आई सब्ट्रैक्ट इट, नो, अलग से दिया है ना, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है. तो वेयर शुड आई शो इट, ओनली करंट ईयर्स लायबिलिटी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. ज्यादा मिल गया है ना, तो हड़प थोड़ी लोगे इनकम समझ के, नेक्स्ट ईयर की इनकम में डाल लोगे. यू विल पुट इट अंडर नेक्स्ट ईयर्स इनकम. ओके, इज दिस क्लियर. अब देखो एकदम ध्यान से, ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 75, ये नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, इनकम नेक्स्ट ईयर के इनकम में ऐड हो जाएगा. दिस विल बी एडेड टू द नेक्स्ट ईयर्स इनकम. ओके, ये पैसे नेक्स्ट ईयर के आपको ये साल आ चुके हैं, इनकम नेक्स्ट ईयर की, पैसे ये साल आ चुके हैं बट इनकम नेक्स्ट ईयर की है. तो विल ऐड इट टू नेक्स्ट ईयर्स इनकम. इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड कर देंगे नेक्स्ट ईयर, अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर ओपन करेंगे तभी. देन 8-9 का भी हो गया. सब्सक्रिप्शन तीनों आइटम्स क्लियर, लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर. एनी डाउट्स? लास्ट ईयर रिसीवेबल था, करंट ईयर इनकम एंड नेक्स्ट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस. प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा, व्हाट इज ईयर्स वाला एंट्री आपने नहीं किया, करेंगे. सेकंड इफेक्ट बाकी है ना एडजस्टमेंट में, अभी मैं डॉट वाला दे रहा हूं खाली. तो प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा, डॉट वाला अभी दे रहा हूं, सेकंड इफेक्ट सब देंगे. प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा इज इनकम 2,500. सर इसका मतलब क्या हुआ, प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा, ऑर्गेनाइजेशन में ड्रामा एक्टिविटीज कंडक्ट किया. उधर देखो ना, ड्रामा रखते हैं ना, शोज रखते हैं ना, कल्चरल शो, तो उसका टिकट से कलेक्शन आता है ना, तो उसका इनकम हुआ. और उसमें खर्चा वर्चा होता है, प्लेस का वो सब यूज होता है, उसमें जो भी चीज नाटक देखा होगा ना, ड्रामा कंडक्ट होता है, एक्टर्स का फीस और डेकोरेशन आइटम्स, उसका खर्चा हो गया. ऑर्गेनाइजेशन हर साल कंडक्ट करता है, तो टिकट्स का फीस उसका इनकम है,
और ड्रामा का जो खर्चा हुआ उसका एक्सपेंस है। ओके, सो कॉस्ट ऑफ स्टेजिंग ड्रामा इज एक्सपेंस। प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा मतलब वो सेल प्रोसीड जो टिकट बेच के आता है वो इनकम है इसका। एंट्रेंस फीस के बारे में क्या दिया है? एंट्रेंस फीस इज कैपिटल रिसीट, तो एड इट टू कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड लिख दो इधर प्लस एंट्रेंस फीस। कितना है एंट्रेंस फीस? दैट इज 800 रुपीज। पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म रिसीट है, वन टाइम रिसीट है। देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज ऑल्सो इनकम, so buy interest on securities, that is how much? 500. then sale of old furniture, क्या कहीं वापस रिकॉर्ड करना है ये सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर? बताओ मुझे, ये हो चुका है। will you record this 200 anywhere now or you have already done? बोलो। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर डन। ये दिख रहा है आपने माइनस किया हुआ यहां से सेल बुक वैल्यू। इज देयर एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इन दिस सम? नो। सेल वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, 200 का था 200 में बेचा। देन एडजस्टमेंट 1500 मेंबर पेइंग 12 each, तो दैट गिव्स अस द आंसर ऑफ दिस। आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का 3900, दिख रहा है। वन इफेक्ट इज ऐड टू सब्सक्रिप्शन, सेकेंड इफेक्ट इज एसेट। करंट ईयर एसेट में जाओ, लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 08 3900। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 08 3900। याद आए तो इनर कॉलम में लिखना, वरना आउटर में लिख दिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर का भी है ना स्टिल इन अरियर्स, इसके लिए मैंने ऐसे इनर कॉलम में दिखाया। फिर सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 ऑफ लास्ट ईयर आर स्टिल इन अरियर्स, ये हमने देखा अभी। लास्ट ईयर का अभी भी मिलना बाकी है, दिख रहा है यहाँ पे। लास्ट ईयर एसेट एंड सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर एसेट, इधर ही ऐड करके दिखा सकते हो। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 07 और 08। 07 का 100 रुपया अभी भी मिलना बाकी है। सो टोटल कितना मिलना बाकी है आपको? 4000 रुपया टोटल मिलना बाकी है, 4000 रुपया। ये 4 का 4000 रुपया आपको नेक्स्ट ईयर मिला तो कहां नेक्स्ट ईयर के? वेर यू विल शो दिस इन द नेक्स्ट ईयर? रिसीट साइड। और समझो नेक्स्ट ईयर भी नहीं मिला एसेट, तो नेक्स्ट ईयर एसेट। उसका नेक्स्ट ईयर भी नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर एसेट। जब तक मिलने का बाकी है तब तक एसेट 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 एसेट। वैल्यू ऑफ स्टेशनरी ऑन हैंड ऑन 31st March 07 was 200 and 31st March 08 is 150. What are these? Opening stocks and closing stock. Okay, so one effect we have already given दोनों का. Can you see that? Opening stock and closing stock. एक इफेक्ट हमने ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, एड ओपनिंग एंड लेस क्लोजिंग, दिख रहा है सबको? कैन यू टेल मी व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? पहले क्लोजिंग स्टॉक का करंट ईयर एसेट। करंट ईयर एसेट, वो करंट ईयर का प्रीपेड है तो करंट ईयर एसेट में लिख दो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 150। बताया था आपको ये 150 रुपया बच गया है, नेक्स्ट ईयर काम आएगा, बराबर है। वैसे ही जैसे ये 150 आपने करंट ईयर एसेट में लिखा, वो 200 कहाँ जाएगा? ओपनिंग लास्ट ईयर एसेट, क्योंकि वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था। तो लास्ट ईयर एसेट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 200 रुपया। इज इट क्लियर? लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग, दिस ईयर का क्लोजिंग बिकम्स नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। देन entrance fees to be treated as capital receipt, done with that. Salary of 700 is outstanding. देखो one effect we have already done. Add to salary किधर गया? ये रहा, हो चुका है। What is the second effect of the liability of current year? तो add outstanding salary 700 रुपया इधर liability में देना बाकी है, देना बाकी है ये। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी नेक्स्ट ईयर किधर दिखेगा? कौन से अकाउंट में दिखेगा? ये 700 रुपया पेमेंट में दिखेगा। क्या ये 700 नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है? नहीं, ये पेमेंट है, ये रोकड़ा आप पे करोगे, ठीक है। अगर इंक्लूडेड है तो माइनस कर दोगे, ईयर वाइज दिया तो वैसे ही रखोगे। ये 700 रुपया आपका करंट ईयर का एक्सपेंस में ऐड हो चुका है, ठीक है सर। तो नेक्स्ट ईयर ये पे
ये पे करेंगे ना हम करेंगे ना, लोग? पेमेंट में दिखेगा ना, हाँ पेमेंट में, एक्सपेंस में नहीं, पेमेंट में, रिसीट पेमेंट में रोकड़ा दोगे आप। एंट्री क्या होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश। ओके, सैलरी एक्सपेंस में नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, ये साल का एक्सपेंस है, ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अगर नेक्स्ट ईयर में इंक्लूडेड है तो माइनस जरूर करेंगे, ऐड कभी नहीं करेंगे। देन उसके बाद बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 07, ध्यान से देखना। इन्वेस्टमेंट देखो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, दिख रहा है, लास्ट ईयर एसेट इन्वेस्टमेंट 4,500, ब्रॉट इट टू दिस ईयर, फिर परचेज भी किया और आउटर कॉलम भी लेके गए, तो हो चुका है, वापस मत कर देना। बिल्डिंग देखो लास्ट ईयर एसेट में लिखा हुआ नहीं, लिखा है, हाँ बिल्डिंग नहीं लिखा है। बिल्डिंग देखो कहां से आ रहा है, 25,000, फ्रॉम वेयर आर यू गेटिंग दिस बिल्डिंग, फ्रॉम लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर एसेट में राइट डाउन बिल्डिंग 25,000, कहां जाएगा ये लास्ट ईयर का बिल्डिंग, लास्ट ईयर से बिल्डिंग विल गो टू करंट ईयर एसेट 25,000, ये भी फिक्स्ड एसेट है। टेल मी, डू यू हैव एनी सेल परचेज और डेप्री ऑन बिल्डिंग, चेक, डू यू हैव सेल और परचेज ऑफ बिल्डिंग in the current year? Have you sold any building or bought any building, check, बोलो। No, sir, depreciation only. सेल और परचेज होता तो किधर दिखता, रिसीट एंड पेमेंट में दिखता, कुछ नहीं है तो खाली डेप्रीसिएशन। कितना टका है देखो उधर, 2.5%, 2.5% होता है इसका, 5% is 1,250, 625 माइनस किया तो 4,375, 2,4,375 इज योर आउटर कॉलम वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ये भी हो गया, बिल्डिंग भी हो गया खत्म, लास्ट ईयर से करंट ईयर एसेट, दो इफेक्ट समझा, लास्ट ईयर एसेट एंड दिस ईयर एसेट एंड डेप्रीसिएशन। देन डेप्री का भी बाकी है अभी इफेक्ट दूसरा। फर्नीचर देखो उसके बाद, फर्नीचर लास्ट ईयर से किया हुआ है हमने, दिख रहा है, लास्ट ईयर एसेट ब्रॉट इट टू दिस ईयर, देन सेल, देन परचेज, देन डेप्री, सब एडजस्टमेंट कर दिया, फर्नीचर खत्म, वापस मत करना अभी, लास्ट ईयर का करंट ईयर हो चुका है। देन डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का भी दो इफेक्ट है, वन इफेक्ट इज योर लेस फ्रॉम एसेट, कहां गया, ये रहा, एक बिल्डिंग में से लेस, एक फर्नीचर में से लेस। एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस डेप्रीसिएशन, ये बाकी है तो ये दे दो, टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर, एक्सपेंडिचर साइड। फर्नीचर पे कितना था डेप्री, 100 रुपीज, एंड बिल्डिंग पे कितना था, बिल्डिंग पे था 625, total depreciation is 725. That's it. I think both the effects of depreciation are also done. Anything else left out, check कर लो। एक शॉर्टकट एक और मैंने बोला भी था, याद रखना, रिसीट पेमेंट का हर एक आइटम वन इफेक्ट, एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली टू इफेक्ट्स। ओके, वैसे भी आप याद कर सकते हो, लॉजिकली भी सोच सकते हो, लॉजिकली सोचोगे तो बेटर ही है। ओके, देख लो ये कंप्लीट हो गया। अभी सबसे पहले आप ढूंढना है आपको ओपनिंग कैपिटल, उसी के लिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है, तो ओपनिंग कैपिटल ढूंढो। हाउ विल यू फाइंड आउट? 59,400. टोटल इज 59,400। No, total is 31,900. है Total 31,900. एंड कैपिटल फंड 29,400. 29,400 is capital fund and 31,900 is total. ये 31,900 क्या है, ये एसेट का टोटल है। कैपिटल फंड कैसे ढूंढा, एसेट माइनस लायबिलिटी, सिंगल एंट्री में करते थे ना, सेम थिंग, एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज कैपिटल फंड। यहाँ का क्लोजिंग कैपिटल विल बिकम करंट ईयर का ओपनिंग कैपिटल 29,400। इज दिस क्लियर? यही कैपिटल फंड ढूंढने के लिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, और कुछ काम नहीं था। ओके, तो यहाँ का ओपनिंग बना। अब जाओ आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एंड फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। 21,000 total. 21 एंड सरप्लस है कि डेफिसिट? Surplus 10,625. ओके, 10,625, प्लीज चेक। टू सरप्लस इज 10,625, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये क्या करना है, सरप्लस आपको ऐड कर देना है यहाँ पे, सरप्लस 10,625
So what is your outer column value now? 4825. 40,000. 40825. 825. 825 and tallies on 41,600. 41 600. 600. Check कर लो सब लोग totals and all. This is your solution, okay? तो ऐसा सम 12 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन विथ ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाया? क्योंकि कैपिटल फंड मिसिंग था. इंपॉर्टेंट क्या था सम में? फर्नीचर, सेल, परचेज, डेप्री. ओके, इन्वेस्टमेंट खाली परचेज, बिल्डिंग खाली डेप्री. तो एसेट पे सेल, परचेज, डेप्री, ये याद रखना है. बुक वैल्यू माइनस करनी है एसेट में से बुक वैल्यू. सेल वैल्यू दिया है, बुक वैल्यू ढूंढना है. बुक वैल्यू नहीं दिया है तो अज्यूम सेल वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू. ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस. गॉट इट? क्लियर विद द प्रॉब्लम? बोलो, एनी डाउट्स? घर पे जाके वापस रिवाइज करना. अगर कुछ सम हुआ तो होमवर्क मिलेगा आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन वेट, अदरवाइज यू कैन लीव. टाटा बाय बाय. सर आज होमवर्क दो ना, कल टेस्ट सर है. कल आपका संडे एग्जाम सबमिट करना है होमवर्क. संडे. सर संडे को राजीव सर का टेस्ट है तो उसका भी प्रिपरेशन करना है. एक उसके दिन बाद छोड़ो. राजीव सर का टेस्ट सवेरे है. उसके बाद सर संडे है. कॉन्ग्रेचुलेशन सर. सर प्लीज. देखता हूँ मिला सम तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं होगा होमवर्क. एक सम रहेगा खाली छोटा सा. करो सर हम लोग जाए. हाँ, इफ यू हैव डाउट्स यू वेट, अदरवाइज यू कैन लीव.